We have few international affiliations, which you can see on the screen. With a member of the IFAC, CAPA, SAFA, these are international recognition bodies. We welcome Kamran. Thank you. These are a local international presence, right? We have offices, the one which you're already sitting, that's the head office. In Karachi, we have at North Nasabad and the Soldier Bazaar, which is the funding stone we had from there. और हमारी कुछ international branches भी है जो आप इसको देख सकते हैं. These are the few sessions. I'm not sure whether you are aware or not. This is we take the opportunity. हमने जो है वो throughout the week कुछ sessions start किए हैं. Starting from Tuesday, we have a career talk session जहाँ पर हम industry के learned speakers को बुला रहे होते हैं, right? So they are from the top-notch companies. So you have an opportunity. So get yourself registered, login करते Facebook पे. That is the official page of ICMA. So you'll be having an opportunity to listen to the learned speaker every Tuesday होता है ये. That timing is from 4 to 5, right? Wednesday we have the session which is called the future CMAs, ठीक है? जहाँ पर आप ही में से लोग होते हैं, right? So they share the success journey and they discuss. So this is again the ideal opportunity, and you may also participate for these sessions. Third, we have a counseling session, whether it's the internal staff or the external. So you have the again opportunity के हम physical sessions जो कि due to the pandemic हम कुछ कम करा सके. So these are the online platforms where you can get yourself registered. You don't have to get a pre-registration, but yes, you can just log into the Facebook official page and you can follow those sessions. और एक हमारा होता है that is called a corporate leader. So those who have, as I discussed earlier, are at a C-level position, CFO, CEOs, तो अपनी journey को describe कर रहे होते हैं, right? So you have lots of lessons to learn from it. This is for the members of the institute, जो members of fellow members है, जो भी institution की आपकी जो correspondence होती है, जो updates होती है, and definitely the job opportunity also is there. I'm from the corporation department, so once you are done with your initial at least 4 to 5 papers, you may approach our department for the placement purpose as well. So this is from our side. I request Rafi to have a brief intro about the organization. Let's welcome Rafi on board. Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे ख्याल से ये हमारा दूसरा जो सेशन हम प्लान किया है उसमें आप लोगों को मौका मिल रहा है. तो थिंग इज, डियर फ्रेंड्स, I represent my own HR consultancy by the name of ARH Global Consultants, and we have collaborated with ICMA Pakistan, and we have a group of professional speakers and trainers by the name of Federation of Trainers. तो थिंग इज कि हम आपके पास क्यों आए हैं या हम क्या चाहते हैं आप लोगों से. वाई सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना कि क्यों. तो इसकी जो असल वजह है दोस्तों वो ये है कि हम चाहते हैं कि लर्निंग, ट्रेनिंग, सेशंस, मेंटोरिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, इसका हम ट्रेंड एक डेवलप करें हमारी सोसाइटी में और इंस्टीट्यूट्स में. आप लोग माशाल्लाह से एक बहुत अच्छे इदारे का हिस्सा हैं, एक बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन, जो कि आप लोगों की लाइफ में बहुत काम आने वाली है. इसके साथ साथ जैसा कि अभी शम्स ने बताया कि आपकी जो इदारा है आपका वो माशाल्लाह से ऑनलाइन, फिजिकल और न जाने कितने सेशंस का आप लोगों के लिए इंतज़ाम कर रहा है. तो सबसे पहले तो आप लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों का आप फ़ायदा उठाएं. जैसे आपको क्लासेस में जो पढ़ाई होती है वो तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली आपको डिग्री भी लेनी होती है, मगर साथ में जो लर्निंग होती है, देखें सिर्फ एग्ज़ाम पास कर लेना, सिर्फ पेपर्स को क्लियर कर लेना और सिर्फ डिग्री का हासिल कर लेना, इट्स नॉट द एंड. यहाँ से इब्तिदा शुरू होती है आप लोगों की.
मैं ये कहना चाहूंगा, आप सबको रेकमेंड करूंगा, और मैं शायद आप लोग इस चीज को इंडोर्स करेंगे कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप अपने आप को वैल्यूएबल, एक्सपेंसिव और प्राइसलेस बनाते हो, उतनी आपकी मार्केट में अच्छी वैल्यू लगती है। इन द सेम वे, जब आप किसी के पास इंटरव्यू देने जाते हो तो यू आर सेलिंग योर सेल्फ, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू बिहेव। कहते हैं ना, एक कोटेशन है कि लुक स्मार्ट, टॉक स्मार्ट, एक्ट स्मार्ट। व्हाई इज दैट सो? द रीजन बीइंग, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक इंसान होता है, वो जाता है मार्केट में फॉर एग्जांपल, और उसको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है फॉर एग्जांपल 25,000 रुपए, ठीक है। और एक स्टूडेंट जाता है, उसको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है 40,000 रुपए। मेरा आपसे सवाल है, कोई इसका जवाब दे सकता है कि उसको 25 क्यों मिल रही है और उसको 40 क्यों मिल रही है? कैन एनीवन आंसर? बेटा थोड़ा जोर से बोलें। क्वालिफिकेशन नहीं है। और कोई जवाब दे सकता? नहीं नहीं, दोनों के पास सेम स्किल है, दोनों के पास सेम डिग्री है, मगर एक को स्टार्टिंग सैलरी 25 मिल रही है और एक को 40 मिल रही है। एक्सपीरियंस नहीं है, ओके। बिहेवियर, स्किल्स, कम ऑन, स्पीक आउट। नसीब का खेल। आप किस तरीके से प्रेजेंट हो, जब आपसे क्या देखिए, आता है, क्या डिमांड करता है, इसको जोन में पाते हैं। ठीक है, आप एक ही सेवन क्वालिफिकेशन से एक मेन चीज होती है आपके है, आप इसके बाद जैसे आपने कुछ अर्ज किया, बिना सेलिंग अवरसेल्फ उसको किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से अपनी सेल्फ को डिफाइन करते हैं, ये चीज बड़ी मीनिंगफुल है। जो एक्सेप्टेड होते हैं प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के अंदर ये चीज देखी जाती है। ठीक है, आपके पास ये भी है, आपका क्वालिफिकेशन सबके पास है, लेकिन आप किस तरीके से अपने सेल्फ को प्रेजेंट करते हैं, अपनी बात को मोटिवेट करते हैं, उसको कन्वे करते हैं कि यू आर द बेस्ट एट दैट। वंडरफुल। यस यू लास्ट। इसमें जो है काफी फैक्टर आते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है कि कुछ जगह जो है उनकी मिनिमम सैलरी जो होती है या उस पोजीशन की जो सैलरी होती है वो डिफरेंट होती है। दूसरा जो कैंडिडेट होता है इसकी अपनी स्किल्स होती है और इसकी जो है नेगोशिएशन पावर होती है। वो अपने आप को किस तरह जो है वो अगर कार्य नेगोशिएट करता है, अपने स्किल्स को किस तरह अपने जो को प्रेजेंट करता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक को 25 मिल रही है, जबकि वो भी मिसाल के तौर पे उसके पास भी वही डिग्री है, और एक को 40 मिल रही है। देखिए दोस्तों, रीजन ये होता है, मैं यहाँ पे एक बहुत फेमस एग्जांपल देता हूँ आपको, कि आपने देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बोलती हैं कि हमें इस यूनिवर्सिटी का MBA चाहिए। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ, मतलब टॉप बिजनेस स्कूल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है, उसकी वजह ये है, उनकी ग्रूमिंग ऐसी होती है। ऐसे इदारे हैं हमारे यहाँ, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे हर हफ्ते किसी ना किसी स्पीकर को बुलाया जा रहा होता है, ट्रेनर को बुलाया जा रहा होता है, CEO को बुलाया जा रहा होता है, हेड ऑफ HR को बुलाया जा रहा होता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स को बुलाया जा रहा होता है, और रियल एक्सपीरियंस, रियल लर्निंग ली जा रही होती है, और वो स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म की जा रही होती है। उससे आप, मैंने आपको एक बात बताऊं, एक दफा मैं एक इवेंट पे गया हुआ था, वहां पे मैं एक IBA के स्टूडेंट के साथ बातें कर रहा था। तो उस IBA के बच्चे ने मुझे क्या बताया कि सर, हम जितना टीचर्स से सीखते हैं उससे ज्यादा इन सेशन से सीखते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास यही होता है, हर हफ्ते कोई ना कोई साहब आए हुए होते हैं और वो अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कर रहे होते हैं। तो इससे होता क्या है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो इन द सेम वे ऐसे सेशंस में जाएं, उनको अटेंड करें, उनको सीरियस लें और उसको अपनी पढ़ाई का हिस्सा समझें, उसको अपनी पढ़ाई का हिस्सा समझें। इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लें, क्योंकि ये आपके लिए किए जा रहे हैं।
तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका फुल आप लोग फायदा उठाएं और इससे लर्न करें और अपने आप को ग्रूम करें, अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाएं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। आप खाली ये नहीं है कि आपने एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है या कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है या एक अच्छा जो है आपने क्या कहते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो एक अच्छे अकाउंटेंट के साथ आपकी आपकी एक अच्छी टाइम मैनेजमेंट भी होनी चाहिए, आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स की सारी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो कि आप जब किसी जगह या किसी टॉपिक को अपने बॉस के सामने प्रेजेंट करें, सो दैट ऑल मैटर्स अ लॉट। तो इन द सेम वे लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहूंगा कि अपने आप को ग्रूम करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, अब डिजिटल दौर आ चुका है, एवरीथिंग इज फ्री। आप हार्वर्ड से लेके MIT से लेके खान अकेडमी से लेके क्या कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, मगर वही जितना आप प्यासे होगे उतना आपको पानी मिलेगा। तो इन द सेम वे ढूंढें, तलाश करें और अपने आप को डेवलप करें। जितना आप अपने आप को डेवलप करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। चले मैं यहाँ पे आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग बहुत लकी हैं कि आप बहुत अच्छे इदारे का हिस्सा हैं और इसका भरपूर फायदा उठाएं, अपने आप को ग्रूम करें और अपने दोस्त अहबाब जो हैं उनको भी ऐसे सेशंस में लेकर आएं ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Abdul Rafi, and I'm sure Rafi has been very kind in terms of providing the learned speaker, and we are thankful on behalf of IC Pakistan for this act, and I'm sure will go a long way. It's my honor and privilege to introduce our today's speaker. We have Mr. Kamran. He has over 20 years of experience. Besides this, he is a motivational and a soft skill trainer. He has been training for more than 5,000 individuals, including the youth and the corporates. Besides this, he's running his own YouTube channel with 400 plus videos currently. And I'm sure Cameron will share the links and we can follow and take the maximum advantage. He's also affiliated with trade bodies of Pakistan under the Ministry of Commerce, including KCCI and FECCI. He's currently the Secretary General at Pakistan Ready-Made Garments and Export Association, consecutively the 4th year. He's also the founding chairman of Karachi International Advertising Festival, aggregated from the International Advertising Association, New York. He loves to write the poetries in English and Urdu and has been published a number of them, and a lot more I'm sure will have the flavor in this session. With this note, I request Kamran to take the stage with a round of applause. प्रेजेंटेशन में उसके अलावा मेरा जो है कुछ दो वीडियोस में थी उसमें ना थोड़ा फोल्डर कॉपी किया है, फोल्डर नहीं कॉपी किया है, फोल्डर कॉपी करना था ना, ठीक है, उसको कॉपी भी कर लेते हैं। मीटा मैम फोल्डर उसका प्रेजेंटेशन वो भी कॉपी हाँ पूरा कॉपी उसमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। सबसे पहले तो I'm very much thankful to the ICMA International जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूं। I'm very much thankful to the Federation of Trainers to Rafi Naqvi जिनके प्लेटफॉर्म के तहत आज मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर मौजूद हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू। अच्छा मुझे जरा बोलना है कि आपने इसकी ज़्यादा आवाज़ नहीं। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक बच्चे ने यहाँ पे बात बोली थी कि ये तो सिर्फ हमारे किस्मत का खेल। मैं सिर्फ एक लाइन में उसका जवाब दूंगा कि अगर किस्मत का खेल है हर चीज, तो हम आखिरत में अपने दुनियावी अमाल के जवाबदार नहीं हैं। It means there is something you have in your hands, you have in your minds. So मैं इससे पहले कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट करूं, जो हमारा आज का टॉपिक है मैं उस तरफ जा रहा हूं। हमारा आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट द मेटा एंड मेटावर्स
फिलॉसफीज। आप लोग इस वक्त डिजिटल एरा में बैठे हुए हैं, आप लोगों के पास पाम टेक्नोलॉजी है, यानी आपके हाथ की हथेली पे मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स के अंदर डिफरेंट एप्स हैं। आपको लगता है कि आप यू कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। आप ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं, आप ईमेल कर रहे होते हैं, आप डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे होते हैं, कोई भी चीज कभी भी सर्च करनी होती है तो गूगल पर वो चीज आ जाती है। और इसके अलावा अगर आपने कोई ट्यूटोरियल देखना है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई जो है मटेरियल चाहिए आपको, उसके बारे में कोई फाइंडिंग चाहिए, तो सिंपल यूट्यूब पे सर्च करते हैं, आपको हर लैंग्वेज में वीडियो मिल जाती है, ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, उससे आपको ब्रीफिंग मिल जाती है। तो इट मींस दैट यू आर एट द अल्टीमेट पोजीशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, बट ऐसा नहीं है। वही चीज जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, गूगल मैप को हमने ऑन किया हुआ होता है, तो एक फीमेल वॉइस आती है हमारे पास, जिसको हम अक्सर गूगल आंटी भी कहते हैं, जो हमें डायरेक्ट करनी होती है, टेक लेफ्ट, टर्न राइट, अब ये करें वो करें। क्या अच्छा हो कि वो खातून खुद जीती जागती आपके साथ गाड़ी में बैठी हुई हो और आपको बता रही हो कि यार यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे नहीं जाओ। अच्छा, जो जिन लोगों की शादी हुई है तो वो लोग कहते होंगे हमारे पास तो खातून मौजूद है, ठीक है ना। लेकिन एक मैं आपको एक बता रहा हूँ परसेप्शन कि टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है। मैं अगर आगे जाऊं, सबसे पहले आप इमेजिन करें, आप इमेजिन करें कि आप जो है कहीं पे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और अचानक आपके जहन में एक प्रोडक्ट आई कि यार मैंने एक प्रोडक्ट खरीदनी है। फॉर एग्जांपल मैंने शर्मिला का मिक्स अचार खरीदना है और वो मैंने खरीदा नहीं है, और आप कहीं पे जॉगिंग कर रहे हैं, तो सडनली एक वेंडिंग मशीन आपके सामने अपेयर हो जाए, उसमें डिफरेंट स्नैक्स, जैम, जेलीज, पिकल्स, अचार वगैरह मौजूद हो, और उसमें से आप सिलेक्ट करें और उसको ओके कर दें, डन कर दें, इमीडिएटली आपकी ऑनलाइन पेमेंट हो जाए, ऑन द नेक्स्ट सेकंड वो प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाए। अगर आपके घर पे कोई मौजूद है तो वो प्रोडक्ट को ले लेगा, अगर आप ही ले जा रहे हैं तो आप टाइम सेट करते हैं कि आफ्टर हाफ एन आवर जब आप घर पे पहुंचे तो एक बंदा वो प्रोडक्ट आपका लेके खड़ा हो और उससे, यानी कि टेक्नोलॉजी अब उस तरफ जा रही है कि आपको मोबाइल फोन की भी जरूरत नहीं है। दूसरे एग्जांपल पे जाते हैं, इमेजिन अगेन, एक हस्बैंड है, शौहर है, वो एक सुपरमार्केट में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। अचानक उनकी वाइफ जो घर पे बैठी हुई है, उनको एक प्रोडक्ट याद है, हमारी प्रोडक्ट थी, कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, और किस कंपनी की प्रोडक्ट थी और क्या मतलब किस कौन सा वेरिएंट था। फॉर एग्जांपल कोई शैम्पू था फॉर ऑयली हेयर था या फॉर नॉर्मल हेयर था, कैसा था, कौन सा वेरिएंट था, किस प्रोडक्ट की, याद नहीं आ रहा। वो खातून क्या करेंगी, वो अपने ब्रेन कंप्यूटर सेंसेस के थ्रू उस प्रोडक्ट को उस सुपरमार्केट में सर्च करेंगी, उनके सामने वो रैक आ जाएगी, वहां पर कहेंगी यस दिस इज द वन, ये ऑरेंज कलर की बोतल थी जो मैंने ली, अच्छा ये फलाना ब्रांड है, ये है। अक्सर हमारे जहन में होता है ना, हम एक प्रोडक्ट को वो कर लेते हैं, और वो उस प्रोडक्ट का लिंक अपने हस्बैंड के पास में, और जब हस्बैंड ट्रॉली लेके चल रहे होंगे तो कहेंगे ओके। ये चीज क्या है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपको आगे लेके जा रही है? अच्छा, ओके ठीक है, ओके सेशन इज लाइव, कैमरा यहाँ पर है। अच्छा, ये इसको भी मैं देख लेता हूँ, इसको यहाँ पर सेटिंग कर लेता हूँ। अच्छा, अब आपके सामने जो है ये दो पोस्टर हैं जो हमारे बचपन की कुछ वीडियोस हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पता नहीं देखी हो ना देखी हो। एक जो मूवी आती थी टीवी सीरीज थी स्मॉल वंडर, एक रोबोट लड़की की कहानी थी। ये लेट 80s की कहानी है जो कि हमारी 2005-7 में भी जो है डिफरेंट चैनल्स पर आई है। फिर एक कार्टून आता था जैक्सन। जैक्सन की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैक्सन जो है एक साइंस फिक्शन कार्टून था जो 1960s में आया था, ठीक है, 1960s में। मैं आपके साथ जैक्सन की एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा। वो मेरा फोल्डर
उस जैक्सन की वीडियो के अंदर जो चीजें 1960s में दिखाई थी दे आर पॉसिबल नाउ, और वो कैसे पॉसिबल है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। नेट चलता है आप? नेट है? Much time. Okay, छोड़ो आगे। आप देख रहे हैं कि ऑडियो ऑडियो आप देख रहे हैं इसमें वीडियो के अंदर के वीडियो इंटरेक्शन हो रही है इसमें। ये 1960s की 1960s में एक कार्टून था ये वीडियो। ओके, आपने देखा कि कुछ छोटा सा गेम्स आपके सामने आया कि एक जो है डिफरेंट रोबोट्स थे और लोग जो है उससे इंटरेक्ट कर रहे थे। जैक्सन की सबसे खास बात ये थी कि वो जो चीज जिस वक्त जो चीज खाना चाहते थे, जो चीज पहनना ओढ़ना चाहते थे, वो चीज उनके सामने आ जाती थी। ब्रांड्स उनके सामने आ जाती थी, उसमें से प्रोडक्ट परचेज करते थे, उसी वक्त को इस्तेमाल करते थे। एक किचन वेंडिंग मशीन थी, आप जैक्सन को सर्च करेंगे उसमें नेट पे तो उसमें आपको किचन वेंडिंग मशीन नजर आएगी। 1960s की बात है जिसमें वो चीज सिलेक्ट करते थे, जैसे कि सबवे में आप बर्गर सिलेक्ट करते हैं सबवे में जाकर कि कौन सी सैलेड डालनी है, कौन सा बर्गर रखना है, कौन सी चीज करनी, और वो प्रोडक्ट वैसे बनकर आपके सामने इमीडिएटली आ जाती थी। तो अच्छा ये जो वीडियो साथ में आ रही है ये हट सकती है ये? नेक्स्ट है ये आपके सामने दो बॉलीवुड फिल्म्स हैं, एक रोबोट आई थी, एक रावण आई थी। इसमें भी आप यही देखें कि एक रोबोटिक कैरेक्टर था जिसको वन टाइम एक ह्यूमन ने फीड किया था कि उसने कैसे कब कैसे कहाँ बिहेव करना है, उसके क्या लाइक्स और डिसलाइक्स होंगे, उसकी क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगी। उसके बाद उसको टर्न ऑन कर इंस्टॉल कर मार्केट में थ्रो कर दिया था, और उसके बाद वो रोबोट अपनी मनमानी कर रहा था। अब वो मूवी थी तो जिसमें एक रोबोट और ह्यूमन वॉर दिखा दी गई। गॉड नोस, अल्लाह को पता होगा कि आगे जाकर क्या चीज होने वाली है, लेकिन अभी तक तो ये चीज पॉसिबिलिटी की तरफ पहुंच गई है। वेलकम टू द मेटा वर्ल्ड। मेटा वर्ल्ड एक ऐसी अल्टरनेट डिजिटल आपके समझने सर्विसेज है कि जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को पूरा का पूरा रिवैम्प कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि फेसबुक
इट्स नाउ मेटा। अब अगर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को अपने मोबाइल पर टर्न ऑन करते हैं तो जैसे मोबाइल जैसे ऑन करते हैं वो ऐप सबसे पहले ऑन होती है तो नीचे लिखा आता है मेटा। ठीक है, मेटा का क्या मतलब है? मेटा कम्स फ्रॉम द वर्ड मटेरियल। और अगर आपने टाइम स्पेस की टेक्नोलॉजी के बारे में सुना हो कि मटेरियल को एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और एक चीज दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुंच जाएगी। ठीक है, टाइम स्पेस का कॉन्सेप्ट है, जमीन और मकान का कॉन्सेप्ट। खैर यहाँ पे भी टाइम स्पेस यहाँ उससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये मटेरियल की वर्ड को अब कैप्चर किया जा रहा है एंड इट गोस टू द मेटा वर्ड्स। वर्ड्स कम्स फ्रॉम द यूनिवर्स। वो यूनिवर्स जो पूरी इस मटेरियल से रिलेटेड है उसको डिजिटलाइज कर रही है। व्हाट इज सोशल मीडिया? सोशल मीडिया क्या था, क्या है? मतलब मेरे लिए, मैं लिटरली ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद, मेरी इस 1 घंटे की कन्वर्सेशन के बाद आपका माइंड थोड़ा बहुत तो चेंज होगा कि यस देयर इज समथिंग न्यू और हम बहुत ही कन्वेंशनल चीजों पे बैठे हैं। सोशल मीडिया क्या है? क्या चीज करता है सोशल मीडिया? एनीवन? कनेक्ट करता है आपको, ठीक है ना? आपको अपने दोस्तों से कनेक्ट करता है, आपको अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करता है। अ कनेक्शन विद इंटरनेट। और इसमें आप देख रहे हैं दो इंसानी हाथ टच कर रहे हैं, यानी दूसरी तरफ भी ह्यूमन है, इधर भी ह्यूमन है, दो ह्यूमन इंटरफेस उनका हो रहा है। इसमें कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज, मैं अब इनको कन्वेंशनल कहूंगा। कन्वेंशनल कहते हैं पुरानी टेक्नोलॉजीज इज नाउ द ओल्ड फॉर्म। फेसबुक फैमिली, इंस्टा एंड व्हाट्सएप, गूगल एंड यूट्यूब फैमिली, लिंक्डइन एंड मोर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड्रॉइड एंड मोर, ये अब सब कन्वेंशनल चीज हो गई है। ये कोई एडवांस चीज नहीं रही है, ये अब आपका डेली लाइफ रूटीन का हिस्सा है। हम आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर द सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद ह्यूमन, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कभी एआई का नाम सुना है आप लोगों ने? अच्छा, छोटी सी चीज बताता हूं आपको। आप गूगल पे कोई चीज लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स, तो गूगल आपको एंटर होने से पहले कोई रिकमेंडेशन दे देता है। ठीक है, अच्छा, वन थिंग, ये काम तो एक इंसान करता है। एक इंसान से अगर आप पूछें, मैं राफी से भी बात पूछूं तो राफी कहेंगे कि मुझे, मेरे पास कामरान एक ऑप्शन नहीं, 4 ऑप्शन। यू कैन गो फॉर दिस कोर्स to IB, you can go for this course to ICMA, you can go for this course to Karachi University or something else. ठीक है, लेकिन ये काम गूगल का, बिल्कुल इसी तरह से आपको ये भी अंदाजा होगा कि गूगल के एडसेंस की टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें क्या होता है कि जब आप YouTube और गूगल खोलते हैं तो उसके साइड में वो रिलेटेड वीडियोस या वो रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिसके बारे में आप पिछले 1 हफ्ते या 15 दिन में सर्च करें। इसके बारे में आपको इल्म है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज, हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे ड्रामों से कोई लगाव नहीं, हम टीवी के ड्रामे नहीं देखता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब वो जब प्रेजेंटेशन देने खड़े हुए और यूट्यूब उन्होंने जब उसको लोड किया यूट्यूब के पेज को, तो सारे हम टीवी के ड्रामों के लिंक्स आ सर, आप तो ड्रामे देखते नहीं है, किस तरह से ड्रामे के इंसान है? बाद में पता चला कि उनकी बेगम उनकी आईडी से देखती थी, तो इस वजह से वो आ रहे। इट शोज कि वो आपको सजेशंस दे रहा है। ये सजेशंस कैसे आ रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियली आ रही है, ह्यूमन के थ्रू नहीं आ रही। आप रोबोट के अंदर सारे के सारे ऑप्शंस फीड कर देते हैं, उसके बाद जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट आती है वो ऑप्शन रोबोट निकाल कर आपके सामने रख देता है, या कंप्यूटर वो ऑप्शन आपके सामने निकाल कर रख देता है। मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में चीज समझा रहा हूँ।
क्योंकि अगर मैं टेक्निकल अंदाज में इस चीज को समझाऊंगा तो आपके सर से गुजर जाएगी। आप लोग ज्यादातर कौन से फील्ड से रिलेटेड है? मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ठीक है ना? आप बहुत कम होंगे जो सॉरी अच्छा बहुत कम होंगे जो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे, मोबाइल ऐप डेवलपर्स होंगे, बहुत कम लोग होंगे। तो इसलिए मैं उसको एक ऐसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जब ये टेक्नोलॉजी सामने आएगी तो आप उसको इजीली एडॉप्ट कर सकें और आपको पता हो कि जो मेटा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। इट्स अ फर्स्ट स्टेप, इट्स अ ओपनिंग डोर टुवर्ड्स द मेटावर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि इट्स एन एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर और अ रोबोट कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर to do tasks that are usually done by humans because they require human intelligence and discernment, यानी कि ability to judgment। discernment का मतलब भी करनी है, आप उसके अंदर वो ability भी है, वो चीजों को जज कर सकता है कौन सी चीज का और उसके आपने एक रोबोटिक कंप्यूटर के अंदर रेडीमेड डिफरेंट ऑप्शंस फीड कर दिए। उसमें आपने जैकेट फीड कर दिया, कोट फीड कर दी, उसमें आपने टी-शर्ट फीड कर दिए, उसमें आपने खद्दर की कुर्तियां फीड कर दी, उसमें आपने कपड़े फीड कर दिए। अब जब कोई चीज सर्च करेगी तो आप ये सर्च करेगी कि इसमें कौन सा वेदर है, कौन सा मंथ चल रहा है और सर्च करने वाला मेल है या फीमेल है, ताकि उसी हिसाब से वो चीज सर्च कि अगर कोई फीमेल है और वो तो प्रोडक्ट सर्च एक चीज उसका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रिंग्स दीस टू थिंग्स। ये दो इस वक्त टेक्नोलॉजी के वो दरवाजे हैं जो आपको नई टेक्नोलॉजी के अंदर लेके जा रहे हैं। एक से आप अवेयर हैं क्योंकि ये अनाउंस हो चुकी है, मेटा, इट्स अ फेसबुक टेक्नोलॉजी। फेसबुक इज नो मोर द फेसबुक कॉर्पोरेशन, का मेजर पेरेंट प्लेटफॉर्म का नाम चेंज हो गया है। अब फेसबुक उनकी प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम उनकी प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप उनकी प्रोडक्ट है। हम उन प्रोडक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट इज द मैश, माइक्रोसॉफ्ट मैश, ये लोगो माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट मैश। जब हम इन दोनों को स्टडी करेंगे, इनके बारे में आपको ओवरव्यू बताएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दोनों इंटर रिलेटेड हैं और एक ही तरह की चीज सामने है। ये बिल्कुल ऐसा फर्क है जैसा कि मैसेंजर, व्हाट्सएप, एसएमएस, एमएमएस, इन लोगों में फर्क की चीजों प्रोडक्शन पर की आईडी या हॉटमेल की आईडी काम दोनों सेम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग। लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, काम सेम है, स्काइप हो गया, ईमो हो गया, काम सेम। तो ये जो दो ब्रांड्स हैं जो सब मार्केट में आए हैं, पर यू मस्ट नो। अब मेटा के बारे में इससे पहले कि मैं आपको मेटा या मेटावर्स या माइक्रोसॉफ्ट मैश के बारे में कुछ बताऊं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में हमने अवेयर होना है। और आज के सेशन के बाद मुझे मेरा रिटर्न जब मिलेगा कि जब आप लोग ये चीजें मेमोराइज कर लेंगे, आप लोग ये चीजें याद रह जाएंगी कि आप लोग आज से 10 साल के बाद कहेंगे कि आज ये चीज हर जगह मौजूद है, लेकिन मुझे सबसे पहले एक शख्स आया था आईसीएम में, उसने बताया था। तो तब मुझे वो रिटर्न मिलेगा कि यस आई शेयर द यूनिक थिंग विद यू। वक्त आने से पहले मैंने वो चीज आपके साथ शेयर की। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है एलिस इन वंडरलैंड। आप में से किसने कहानी पढ़ी? एलिस इन वंडरलैंड में क्या होता है, एक वन लाइन में है कि एक लड़की होती है और वो एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। शी वाज रियल, वो एक रियल में एक लड़की थी, बट एंटर्ड इन एन फैंटेसी वर्ल्ड जहां पर कोई एक माउस था, रैबिट था, सॉरी रैबिट था। कभी वो बहुत बेवकामत हो जाता था, कभी वो बौना बन जाता था, कभी कोई और बहुत सारे होते हैं। विजार्ड ऑफ ओज के कुछ कैरेक्टर मिक्स अप हो रहे हैं, स्टील मैन विजार्ड ऑफ ओज में होता था। ये फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते, ठीक है ना। एलिस इन वंडरलैंड में ये था कि वो थी रियल, ये बात याद रखिएगा, वो खुद रियल थी और एक फैंटेसी वर्ल्ड में जाती। नेक्स्ट इज सिंड्रेला। सिंड्रेला क्या है? She was surrounded by the fantasies in real world.
वो अपनी रियल वर्ल्ड के अंदर मौजूद थी और उसके इर्द गिर्द फैंटेसीज। एक फेरी गॉड मदर आती है, वो कहीं नहीं जाती, वो अपने उसी पुराने झोपड़े में खड़ी हुई होती है, उसी के इलाके में खड़ी होती है। एक फेरी गॉड मदर आती है, बादशाह के महल में जाती है, उसके कपड़े फैंटेसीज होते हैं, उसके शूज फैंटेसीज होते हैं, हर चीज उसकी फैंटेसीज होती है। एक लिमिटेड टाइम टेन्योर के बाद होती है, इसके बाद वो वापस अपनी रियल दुनिया में आ जाती है। All this can happen now. Yes, this is the fact, a blunt truth. कि एडिसन वंडरलैंड की कहानियां, सिंड्रेला की कहानियां अब सच होती हुई हमें नजर आएंगी। कैसे? Let's introduce augmented reality. Augmented reality क्या है? कि रियल सिनेरियो में कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो आपको उसके लिमिटेड तौर पर यूज नहीं करूंगा का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन अभी चीजें हकीकत का हिस्सा, उसको एक नई रियल डिजिटल वर्ल्ड में ले जाएंगे। वर्चुअल रियलिटी आप तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आप कहीं और की दुनिया देख रहे हैं। एंड थर्ड थिंग इज द वर्चुअल वर्ल्ड। वो वर्चुअल दुनिया डिजिटली मौजूद है और उस दुनिया में जाकर आप रह सकते हैं। एक जॉन का एडवर्टाइजमेंट आजकल आ रहा है, उसमें एक टीवी एक्टर वहाद है, आप देख रहे होंगे कि उसमें वो एक बच्चे ने 12-13 साल का बच्चा है, उसने एक हेडसेट लगाया हुआ, ठीक है। अच्छा से बच्चे ऐसे होंगे तो वीडियो गेम्स खेल रहे, 3D वीडियो गेम्स, 3D जो है वो हेडसेट लगा रहे हैं। ये हेडसेट अभी तक सिर्फ गेमिंग की लिमिटेड है, लेकिन ये अब हेडसेट टेक्नोलॉजी एंटर हो रही है इन द वर्ल्ड ऑफ व्हाट्सएप। कैसे एंटर हो? व्हाट्सएप पे हम वीडियो कॉल करते हैं, हेडसेट अगर मेटा टेक्नोलॉजी आ रही है और उससे इंप्लीमेंट हो रही है और व्हाट्सएप उसको मौजूद है, फेसबुक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लाया उसके लिए, व्हाट्सएप को उसने हेडसेट से कनेक्ट किया, तो हमारे को लगाएंगे अपने हेडसेट को आंखों में, तो हमारे सामने सबके विजुअल सामने आ रहे हैं, दो घर सामने आ रहे होंगे, एक तरफ हमारा कोई और फ्रेंड होगा, एक तरफ हमारा कोई और फ्रेंड होगा, और सब इंटरेक्ट कर रहे होंगे, हमें ऐसा लगेगा वो सामने है। अच्छा, एक टेक्नोलॉजी और भी है जिसको मैं ऑगमेंटेड रियलिटी कह रहा हूँ, जिसमें क्या है, आपको हेडसेट की जरूरत नहीं, आपके सामने एक चीज आ पॉपअप होकर आ रही है, तो मौजूद नहीं है लेकिन आपको नजर आ रही है। किस तरह से नजर आ रही है? अब मैं वो चीजों की तरफ आऊंगा। AR and VR, virtual reality and augmented reality is an interactive experience of a real world environment where the objects are inside in the real world. यानी कि real world के अंदर वो चीजें सामने आ जाती हैं आप। Sometimes across multiple sensory modalities including visual, auditory, यानी कि कुछ चीजें हमें नजरों से नजर आएंगी, कि visuals नजर आएंगे। Next is haptic touching, हम चीजों को छू भी सकते हैं, वो चीज एग्जिस्ट यहाँ नहीं कर रही, लेकिन उसका सिनेरियो ऐसा डेवलप होगा कि आपको टच करके देख सकते। फॉर एग्जांपल, एक तरफ आपके एक बर्फी रखी है, एक तरफ आपके एक रफान की जेली रखी है, वो वर्चुअली सामने आ रही है। अब आप बर्फी को टच कर रहे हैं तो उसकी हार्डनेस आपको उंगलियों पे महसूस होगी, और एक जेली को टच कर रहे हैं, वर्चुअल जेली को, और आपको उसकी एक तो फ्लफीनेस है और जो एक उसकी क्या कहते हैं, वर्ड नहीं आ रहा है, तो सॉफ्टनेस, वो आपको फील कर रहे हैं। सेमेटो, अच्छा इसको मैं हमेशा समोसा सेंसरी पढ़ता हूँ, सेमेटो सेंसरी। सेमेटो सेंसरी, फील ऑफ टेम्परेचर, मरी में जा रहे हैं, मरी की ठंडी हवा महसूस हो रही है, सब कह रहे हैं सर पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए, कौन सी दुनिया बता रहे हैं। जस्ट इमेजिन, आप लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन आपके बड़े बहन भाई उसको मौजूद होंगे लेट 80s के जमाने में, जिस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन आता था, जिस वक्त एक गोल डायल घुमाने वाला टेलीफोन था। कहीं ना कहीं कुछ मेमोरीज में होगा, आप लोग उसमें 1-2 साल के होंगे, आप लोगों ने देखी होंगी चीजें घर में यूज होती हैं। उस दौर को आज के दौर से कंपेयर कर जमीन आसमान, इसी तरह से आज के दौर को आगे के जमाने में कंपेयर कर। ऑल फैक्ट्री,
ऑल्फैक्टरी स्मेल, खुशबू। अभी तक मेरे पास चीज को खा के हजम करने की टेक्नोलॉजी नहीं आई है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, हम उसकी खुशबू सूंघ सकते हैं। अभी आजकल के, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से हूं, तो एडवर्टाइजमेंट्स की बहुत चीजें मैं देख रहा होता हूं, उसके अंदर क्रिएटिविटी। अक्सर आप देखें कि जो चटखारेदार एडवर्टाइजमेंट होते हैं, चटखारेदार प्रोडक्ट्स की, उसमें उनका चटखारेदारनेस इतनी ज्यादा दिखाई जाती है कि हमें फील हो जाता है कि शायद हम चटखा रहे हैं। खैर ये तो साइकोलॉजिकल हो रहा है ना, आपको बकायदा वो चीज फील हो, ठीक है। ये क्या है, ये संडेला की जो इमेजिनेशंस थी ये सामने आ गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वर्चुअल, सॉरी, ये ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी में फर्क क्या है? ऑगमेंटेड और वर्चुअल। ऑगमेंटेड जो है वो आपके रियल वर्ल्ड के सीन के अंदर, यानी आपकी ये जो जैसे ये हॉल है, यहाँ पर आपके एक पॉपअप होकर एक रैक सामने आ जाएगी। It's an example of the augmented reality. Virtual reality में completely immersive virtual environment. आप एक virtual environment में मौजूद हो, कि आप एक स्वैप करके एकदम देख सकते हैं कि एक हॉल यहाँ पर है, एक हॉल नीचे, नीचे हॉल में भी आप पहुंचे यही बैठे बैठे और देख रहे हैं वहां पर कौन से लेक्चर चल रहे हैं, किस तरह काम होता है। आगे इसके बहुत सारी डेप्थ की चीजें, ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। This presentation just an idea. This presentation is not the formula or not the Bible of anything. आप यहाँ से अल्फाज, ये वर्ड्स YouTube पर सर्च कर सकते हैं और YouTube पर आपको बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज आपके सामने नजर आएगी। एक आइडिया करो, अच्छे के टाइम है ना 4 बजे। ओके, आई हैव अराउंड 1 hour 40 minutes, ठीक है सर। Sure. Virtual world में मैंने लिखा है और virtual space, एक virtual space होगी जिसमें आप एंटर हो सकते हैं। इस कंप्यूटर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जब आप वीडियो गेम खेलते हैं या आप लोग खेल रहे हैं या आपके छोटे बहन भाई खेल रहे हैं वीडियो गेम, तो वो जब हेडसेट लगाते हैं तो क्या देखते हैं, वो नई दुनिया में होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि जी कहीं पे बंदूकें चल रही हैं और इस तरह से कहीं पे कुछ कोई फाइटिंग हो रही है, एक नया किला है, उस किले के अंदर जा रहे हैं, उनको इधर वही चीज नजर आ रही है, वही चीज नजर आ रही है, वो उस नई डिजिटल स्पेस मौजूद हो। इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड। ये दोनों आज के जमाने में क्रिएट कैसे हो, क्योंकि कोई जादू नहीं है, हर चीज के पीछे लॉजिक्स है, हर चीज के पीछे साइंस है। तो ये चीज यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर रैक आएगी तो कैसे है। अगर मैंने हेडसेट लगा दिया तो अंडरस्टैंडिंग हमारी 3D विजन हमें नजर आ रहा होगा और वो चीज हम देख रहे होंगे और उसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन खुली आंखों से कोई चीज कैसे नजर आए, वो कहां से आ रही है। तो वर्चुअल रियलिटी में लिखा है रियल वर्ल्ड के अंदर वर्चुअल किसका नजर आता है, वो क्रिएट होगी दो तरह से। नंबर 1 इज होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी। होलोग्राफ का कुछ आइडिया है आप लोगों के साथ, कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी। एक क्या नाम है, विजुअल 3D विजुअल आपके सामने होता है, उसको आप चारों तरफ से चलकर देख सकते हैं, उसके आगे पीछे उसको ऐसे देख सकते हैं, वो आपके सामने बोल रहा है, आपकी तरफ चेहरा करके बात कर रहा है, बट यू कांट टच। ये है होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी में सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। अब मैं उस एग्जांपल में आता हूं, सबसे पहले मैंने आपको दी थी, हम जा रहे हैं वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, हमारे हाथ में आजकल एक एंड्रॉइड वॉचेस आ गई हैं। अब आपने सोचा कि यार क्या नाम है, मुझे जो है एक प्रोडक्ट परचेज करनी है, तो प्रोडक्ट में कैसे परचेज करूं। एक चीज एडवांसमेंट जो होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये होगी कि अभी तो आप YouTube पे कोई चीज सर्च कर रहे हैं, अगर आप माइक दबा देते हैं तो जो आप बोल रहे होते हैं वही तुमको दिखा जाता है। उसमें ये होगा कि जो आप सोच रहे होंगे वो चीज भी उसमें फोटो सामने आएगी, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज को भी
वो कैप्चर करेगा। ये आगे की टेक्नोलॉजीज में है, अभी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज में एज एन एक्सपेरिमेंट मौजूद है, लेकिन ये चीज ज्यादा दूर नहीं है। क्या आप जा रहे हैं और आप मैंने एक जैम लेना अब क्या है, आपकी घड़ी में एंड्रॉइड है और वो हेलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है, सॉरी एंड्रॉइड जैसे घड़ियां होती हैं, और वहां से वो रैक अपेयर होगी सामने। अब जब आप उसको टच कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला टच सिस्टम है, सेमोटा करके जो वो था, तो वो टच सिस्टम का स्मेल का था, ये था टच आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट टच हो रही है और वो ऑर्डर पे जा रही है। ये आप देख रहे हैं मोबाइल के अंदर से विजुअल निकलता है, ये घड़ी के अंदर से विजुअल निकलता है। ये लेडी जो आपको नजर आ रही है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन एक होलोग्राफिक उस पे नजर आ रही है। होलोग्राफिक डिफरेंट अंदाज से है। होलोग्राफिक ऐसा भी प्लेट यहाँ रख दी जाती है छोटी सी, और उसके अंदर से विजुअल सामने आता है। होलोग्राफिक ऐसा भी है कि वो 3D पूरा सेटअप किया जाता है, इधर से लेजर लाइट्स आएंगी, इधर से लेजर लाइट्स आएंगी, और वो सब आपस में कनेक्ट होंगी और बीच में से विजुअल आएगा। मल्टीपल इसकी वो है, लेकिन वो चीज जो रियल में आपके आ रही है, अभी ये एक इनिशियल फेज पे है, लेकिन इतने एक्चुअल फेज पे आ जाएगी कि मेरे साथ एक रैक रखी हुई होगी और आपको लगेगा कि वो रियल में है। फॉर एग्जांपल ये डाइस है, तो आपको लगेगा ये रियल में है, जबकि रियल में नहीं होगी, वर्चुअल। तो ये टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट। नेक्स्ट चीज वर्चुअल रियलिटी के अंदर क्या है, स्मार्ट ग्लासेस। स्मार्ट ग्लासेस इस वक्त ऑन सेल है, फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट मार्केट में लेकर आ गया है, ज्यादा महंगे नहीं है, अराउंड 50,000 60,000 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर। इसकी प्राइस इतनी चीप इसलिए की गई है ताकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ सके। स्मार्ट ग्लासेस में क्या है, मैं अभी इस लैपटॉप के सहारे बात कर रहा हूँ और मुझे बार बार इधर जाना पड़ा। अगर मैं स्मार्ट ग्लासेस लगा तो मेरी आंखों के सामने यहाँ पर पूरे विजुअल आ, आप भी नजर आ रहे होंगे और विजुअल भी होगा। विजुअल को स्वैप कर रहा हूँ, स्लाइड चेंज होगी, विजुअल को स्वैप कर रहा हूँ, स्लाइड चेंज होगी, और वो स्लाइड आपके सामने भी आ जाएगी। यहाँ पे होलोग्राफिक एक स्क्रीन होगी, एक्चुअल स्क्रीन नहीं होगी, लेकिन एक डिस्प्ले आ रहा होगा जहां पर आप सब चीजें देख सकते हैं। अगर क्लास ज्यादा बड़ी है तो हर किसी की सीट के आगे विजुअल आ रहे होंगे, इधर से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सब सामने बैठ के देख रहे हैं, लाइक अ कंप्यूटर लैब। बैठे हुए आप एक सीट पे हैं, लेकिन ऐसे कंप्यूटर लैब वो काम कर रहे हैं। तो वर्चुअल रियलिटी इस वक्त जो है दो चीजों के थ्रू क्रिएट हो रही है, एक होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी और एक स्मार्ट ग्लासेस। वर्चुअल वर्ल्ड, और वर्चुअल वर्ल्ड क्या है, ये आप देख रहे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में एक हेडसेट है जो उसने बंदे ने अपने आंखों में लगाया हुआ है, और दो हैंडसेट है जो उसने अपने हाथों में पहने हुए हैं, जिसके थ्रू वो अपने आप को इंटरेक्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, और अंदर जो उसका जो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो उसका फिजिकल बिहेवियर है वो आपके उसके हैंड्स के साथ मैच हो रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मूवी देखी थी, ये जो हॉलीवुड फिल्म्स होती हैं जिसमें वो रियल ह्यूमन एक खड़ा होता है और एक एलईडी टेक्नोलॉजी होती है, उसके लेग पे मार्क्स लगा देती है ह्यूमन के ऊपर, और कंप्यूटर में वो कार्टून कैरेक्टर होता है। जब वो बंदा ह्यूमन ऐसा ह्यूमन को हिल रहा है, कंप्यूटर में कार्टून हिल, जैसे वो अपना हाथ हिला रहा है वैसे वो कार्टून हाथ हिला रहा है। ठीक है, ये वही टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, लेकिन अब उस वक्त वो चीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, अब ये डिवाइस की सूरत में आ गई, और ये डिवाइस भी आप लोगों के पहुंच से कोई ज्यादा दूर नहीं है। ये आप देख रहे हैं हैंडसेट, हेडसेट लगाए हुए आंखों के आगे, बंदा एक खाली कमरे में बैठा है। आप लोग लगेगा शायद ये दीवाना हो गया है, इसके साथ कुछ मसला हो गया है। उसने हेडसेट लगाया हुआ है और अकेला, ठीक है ना, तो उसको पकड़ के पागलखाने दाखिल मत कराइएगा, क्योंकि अगर आप उसको दाखिल कराएंगे तो पागलखाने की जरूरत आपको होगी, उसको नहीं, क्योंकि वो एडवांस वर्ल्ड के अंदर है, वो एक नई दुनिया के अंदर जी रहा है, वो एक नई चीज देख रहा है। जब आप उससे पूछेंगे वो बाहर आके कहेगा, ओह माय गॉड आई सॉ दिस, मैंने ये चीज देखी है, ये चीज देखी है। मेरा भी वो छोटा भांजा है, हैप्पी पैरिस स्कूल में पढ़ रहा है, हैप्पी पैरिस में बहुत एक्टिविटीज होती हैं, उसको 3D क्लासेस लगा बाहर गया, मामू सारी चॉकलेट चॉकलेट के पहाड़ थे, इतने बड़े टब्स थे, चॉकलेट थी, मैं उनको टच कर सकता, मैं वहां पे उनको टच कर रहा था, लेकिन असल में मैं नहीं टच कर रहा था। मैंने कहा ये तो भाई ये तो और ज्यादा आगे बढ़ने के चक्कर में है कि वो चीज हाथ में क्यों नहीं आ रही है। चॉकलेट वर्ल्ड पुलिस को घुमाई गई। अब वो 4 साल का बच्चा है,
और वो इसको पीजी वन में पढ़ रहा है, चॉकलेट वर्ल्ड उसको घुमाई गई है, वो बच्चा कितना एडवांस होगा जब वो हमारी एज में है। उसको लगेगा यार तो बचपन में चीजें देख रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसा जैसा हम लोग जो है वो डिंग डोंग का एडवर्टाइजमेंट देखते थे टीवी पे, एक बिल्ली मोटी काली सी जो गले में डिंग डोंग डाल देना, ठीक है ना, उसके लिए चीज ऐसी है। और हम आज, मैं एक एक्सपर्ट बनकर आप लोगों को आके बता रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी है, आप लोग भी बैठ के सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग चेंज में जा रहे हैं, हम लोग को चेंज सिनेरियो के अंदर एंटर होना। तो ये जो चीज है इस वक्त ये आपके लाइफ में समझने के हर कदम पर आपके इन्वॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी बात, क्लास खत्म होती है, आप अपने टीचर से कहते हैं सर नोट्स, तो सर अक्सर यूजुअली मुझे नहीं पता, सब करते हो कुछ करते हैं, जैसे मैं व्हाट्सएप हो जाएगा आप लोगों को, एक ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में वो नोट्स चले गए, हैंडआउट चले गए, आपने व्हाट्सएप पे बैठ के पढ़ लिया। अब वो चीज भी खत्म हो गई, प्रिंट आउट निकालनी है, प्रिंट आउट निकाल के लेके जाए, पहले हम एक छोटी छोटी चीजों का प्रिंट आउट निकालते हैं। मैंने तो 1999 में बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ था, 2003 में पास आउट हुआ था। तो 1999 में उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता था कि दो लाइन भी अगर मुझे प्रिंट आउट में निकालनी है तो तुम्हारे घर को पता चलेगा। क्यों? क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इतना यहाँ से यहाँ तक होता था और जो वो चलता था उसके बाद ऐसे आती थी, पूरी लैब में सभी देखते थे, सामान्य 4 पेज निकाले बहुत पढ़ाते हैं, कोई तो चीज उसने निकाली, और आज हम मोबाइल में बैठ के देख रहे थे। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि मैं बेसिकली आप लोगों को जैसे एक होता है ना साइकोलॉजिस्ट, थेरेपी कर करके आगे धकेल रहा होता है, तो मैं इस वक्त साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर आप कह रहे हैं, मैं एक चीज को क्लियर करके अगले फेज पे लेके जा रहा हूँ। अब से कोई 15 मिनट पहले मेटावर्स की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इतना कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि यार कौन सी डिवाइसेस हैं, किस तरह है, हालांकि जहन में होंगी चीजें। मैं आजकल के स्टूडेंट्स को अंडरस्टिमेट नहीं करता, आजकल के स्टूडेंट्स अपनी जो फैकल्टी टीचर्स के समझ के काफी करीब मौजूद होते हैं, लेकिन उनको सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन को लेके चलना नहीं आता स्टूडेंट्स को, उनकी नॉलेज को सिस्टमैटिकली लेके चलना का काम टीचर्स का है, ठीक है ना। तो आप लोगों को हेलोग्राफी का भी पता होगा, आप लोगों को एंड्रॉइड वॉचेस का भी पता होगा, आप लोगों को उसका क्या नाम है ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है हेडसेट का पता होगा, लेकिन ये कनेक्ट कैसे होनी थी? आपके मोबाइल में मेटा लिखा हुआ है, मेटा है क्या? तो ये इन चीज से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जब वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड कंबाइन होते हैं तो एक वर्चुअल सिनेरियो क्रिएट होता है, और इस वर्चुअल सिनेरियो में आप देख रहे हैं कुछ अवतार्स मौजूद हैं, इनको हम अवतार्स कहते हैं। सरप्राइजिंगली मेरे जहन में चीज थी, लेकिन मैंने उसको कंफर्म किया तो वाकई में सच थी। इंग्लिश का वर्ड है अवतार, हम उसको अवतार बोलते हैं, AVTAR। इस पे एक हॉलीवुड फिल्म भी आ चुकी है, एनिमेटेड फिल्म अवतार, बहुत हिट हुई है, बहुत ज्यादा हिट हुई है, और उसमें उसका सारा कॉन्सेप्ट दिखाया गया था कि अवतार क्या होता है। Avatar word comes from the Hindi language, or we can say the Sanskrit word, Sanskrit language अवतार, जो हम इंडियन मूवीज में एक वर्ड यूज करते हैं अवतार, भगवान का अवतार दुनिया में आ गया, अब इंसान का अवतार डिजिटल वर्ल्ड में आ गया, तो ये वही वो अवतार ही अवतार बना। ये हमारे फेसबुक पे जब आप पोस्ट करते हैं तो फेसबुक पे एक नई चीज अब आ गई है, आप सब में से कई लोगों ने अपने अवतार बनाए हैं, अपने जैसे बाल, अपने जैसे ग्लासेस, अपनी जैसी हाइट, जैसी बॉडी फिजिक, जैसे आप कपड़े आप पहनते हैं उस तरह से सब चीजें, ठीक है ना। और प्लीज रियल अवतार बनाया करें, ऐसा ना हो कि अवतार कुछ है और वो बंदा कुछ है, ठीक है। बंदा मोटा है तो मोटा चाहिए, दुबला है तो दुबला चाहिए, नाटा है तो नाटा चाहिए, लंबा है तो लंबा चाहिए, ठीक है ना, लेकिन अवतार सही होना चाहिए, वरना धोखा हो जाएगा। अच्छा, ये अवतार आप बनाते हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, अवतार क्या जरूरी है बनाना? नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है टू कनेक्ट योर इंटरेस्ट विद द डिजिटल इंटरेस्ट। ये एक अवतार हम एक लेकर आ रहे हैं, उसमें आप अपने रियल सिनेरियो को भी अंदर लेकर आ सकते हैं, आप उनको जैसे रियल में रखते हैं बिल्कुल वैसे भी आप उसमें आके देख सकते हैं। मेटावर्स क्रिएटेड, जब भी वर्चुअल वर्ल्ड वर्चुअल रियलिटी कंबाइन होते हैं तो मेटावर्स यानी कि एक मेटा टेक्नोलॉजी को लेकर जो यूनिवर्स है वो क्रिएट होती है।
अब हम आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट मैश। माइक्रोसॉफ्ट मैश के अंदर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट हमें किस चीज को सपोर्ट करता है? एक लाइन में ऑफिस वर्किंग के लिए, वर्क ऑफिस, ऑफिस इंटरेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशंस, कैलकुलेशंस, एक्सेल है, एक्सेस है, उसमें आप उसको पूरा एक डैशबोर्ड बनाते हैं, सब चीजें करते हैं, ये सब चीजों का आपको सपोर्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट मैश जो है वो सारी आपकी ऑफिस टेक्नोलॉजीज को डिजिटलाइज कर वर्चुअल वर्ल्ड में लेके जाता है। अब वो चीज जो आप ऑफिस डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो आप उस दुनिया में बैठकर बोल रहे हैं, आपका अवतार बैठकर बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है, इंटरेक्शन हो रही है आप लोग इसमें। डिफरेंट जैसे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट आप देख रहे हैं, इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए HoloLens है। HoloLens इज लाइक अ स्मार्ट ग्लासेस जो मैंने आपको बताया, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, इन सब चीजों की टेक्नोलॉजी। मतलब कहीं ना कहीं देखिए जी, एक बात मैं आपको बोलूं कि आप कहते हैं कि इंसान बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, जितनी भी तरक्की कर ले अल्लाह के करीब नहीं पहुंच सकता। अल्लाह विदाउट डिवाइसेस हमारे लिए दुनिया भी बनाई हुई है, हमारे लिए वर्ल्ड भी बनाई हुई है और हम लोग फिजिकली मौजूद भी हैं। मुझे या आप लोग मुझे किसी डिवाइस के थ्रू नहीं देख रहे, बल्कि उस डिवाइस के थ्रू देख रहे हैं जो आपके बॉडी का हिस्सा है, आईज। उस डिवाइस के थ्रू सुन रहे हैं जो आपकी बॉडी में मौजूद है। लेकिन जितनी भी डिजिटलाइज चीजें हैं उनकी सपोर्ट के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। तो जब भी कोई नई चीज आपके सामने आए, कि यार नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो पहला सवाल आपको ये होना चाहिए, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, व्हाट आर द सब टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट दिस मेन टेक्नोलॉजी। कौन सी सब टेक्नोलॉजी? ये सब टेक्नोलॉजीज है कि HoloLens है, स्मार्ट ग्लासेस है, आपके हेडसेट्स है, स्मार्टफोन्स है, स्मार्ट मोबाइल्स है, लैपटॉप्स है। मेटा इनकॉर्पोरेशन फेसबुक, सबसे पहले जो रेवोल्यूशन अभी आया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट मैश अभी तक फ्लोर पर नहीं आया है, अभी सिर्फ इसकी लॉन्चिंग वीडियोस आई हैं। एक वीडियो में, दो वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा सेशन के एंड में, एक माइक्रोसॉफ्ट मैश की और एक फेसबुक मेटा, ताकि वो जो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो चीजें क्लियर हो सके। वक्त की हमारे पास कमी है, अदरवाइज उस वीडियो के साथ कर लेता, मैं नरेशन भी देता कि कौन सी चीज किस तरह से है। तो मेटा प्लेटफॉर्म जो कि बिजनेस का है, फेसबुक इनकॉर्पोरेशन का है, ये कंपनी जो है अभी भी एक चीज है कि फेसबुक का नाम चेंज नहीं हुआ है, फेसबुक की कंपनी का नाम चेंज हो गया। फेसबुक की कंपनी का नाम पहले फेसबुक ही था, अब उसकी कंपनी का नाम मेटा हो गया है। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी इसमें आ गई। मेटा और मैश में क्या फर्क है? Microsoft Metaverse and Microsoft Metaverse are at least the company's vision for it is similar to what Facebook is planning. यानी कि Microsoft Metaverse वो चीज प्लान कर रहा है, जब ये फ्लोर पर आएगा तो Facebook की जो मेटा टेक्नोलॉजी है वो आपको छोटी लगेगी, क्योंकि Microsoft बड़े होराइजन। अभी भी आप देख रहे हैं Facebook क्या है? Facebook सिंपल इज एन ऐप जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन Microsoft विंडोज क्या है? विंडोज एक रूह है, एक सोल है, जिसके बगैर लैपटॉप चल ही नहीं सकता है आपको उस टेक्नोलॉजी। इसी तरह से एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी, एंड्रॉइड के थ्रू आपका मोबाइल फोन चल ही नहीं सकता। तो जो प्लानिंग अभी फेसबुक कर रहा है उस पे पूरी की पूरी कायनात बना के बैठा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, जो उसको मार्केट में लेकर आप लोग। बट देयर इज वन बिग डिफरेंस, माइक्रोसॉफ्ट इज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ वर्क। माइक्रोसॉफ्ट, वही बात जो मैंने भी आपसे पूछी कि माइक्रोसॉफ्ट के नाम आते हुए सबसे पहली चीज क्या आती है? ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क से रिलेटेड एकेडमिक वर्क, ठीक है ना? जबकि फेसबुक इज मोर अबाउट सोशल मीडिया एंड सोशल इंटरेक्शंस, यानी कि वो सोशली आपको इन्वॉल्वमेंट। तो इमेज है कि जब मेटा और मेटावर्स कंबाइन होंगे तो वही जो अभी मैंने आपको एक वर्चुअल सिनेरियो की पिक्चर दिखाई है कि कुछ चार अवतार बैठे हैं, वो चार अवतार आ रहे हैं मेटा के थ्रू, एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है मेटा माइक्रोसॉफ्ट मैश, और वो आप इसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड। अब हम मेटा की प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है? ब्रीफ में मेटा के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताता हूं। मेटा मींस फेसबुक। अभी माइक्रोसॉफ्ट मैश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फेसबुक मेटा की बात कर रहा हूं। फिलॉसफी ऑफ मेटा,
फिलॉसफी ऑफ मेटा मैं बता चुका हूँ क्या है। इसमें पहली चीज जो क्रिएट कर रहे हैं मेटा के अंदर 3D स्पेस, एक 3D स्पेस आपकी क्रिएट की जा रही है जिसके अंदर आप जाएंगे 3D स्पेस के अंदर और एक नई दुनिया के अंदर कदम रखेंगे। सिंपल एक डेफिनेशन है, सबसे पहले ऐसे कहते हैं ना खाना खाने के लिए क्या चीज जरूरी है, एक प्लेट की जरूरत है। तो इसी तरह वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर होने के लिए क्या चीज की जरूरत है, 3D स्पेस की जरूरत है। ये 3D स्पेस का एक विजुअल है आपके सामने। एंड अवतार, अवतार जो आपके जो सिर्फ अभी मैं एंड में अवतार के ऊपर से एक पर्दा और उठाऊंगा कि अवतार किस किस तरह के होंगे, और सोशल नेटवर्किंग सिर्फ ह्यूमंस के साथ नहीं, डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ भी हो, और वो डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है वो आगे मैं बताऊंगा। तो अवतार और 3D स्पेस ये मिलेंगे जब ये अवतार, या आप अवतार सेट कर रहे हैं, कपड़े कैसे होंगे, बाल कैसे होंगे, उसके स्किन टोन कैसा होगा, आईज कैसे होंगी, हाइट कैसे होगी, कपड़े कैसे पहनते हैं, कैसे चलेगा, हंसेगा, बोलेगा, रोएगा, क्या है, वो सारी चीजें आप उसमें फीड कर रहे होंगे। अच्छा, अब मेटा की प्रोडक्ट्स में नंबर 1 पे फेसबुक आ गया आपका। ये आपका फेसबुक है। नेक्स्ट आ गया मैसेंजर, जिसके थ्रू आप मैसेजेस भेज रहे होते हैं। नंबर 3 इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आपके लिए एक ग्लैमर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें पिक्चर्स शेयर होती हैं, वीडियोस शेयर होती हैं, कोई ढंग का काम नहीं होता उसमें। अच्छा जी, व्हाट्सएप इज द नीड ऑफ द टाइम। जैसे आज मेरा एक सेशन मेटावर्स पे है, इसी तरह से एक सेशन कुछ महीनों के बाद मेरी कोशिश होगी आप लोगों के साथ करूं कि हाउ टू रन बिजनेस ऑन व्हाट्सएप। मेरा खुद का 80% काम, चाहे वो मेरा सेल्फ बिजनेस हो या जहां मैं जॉब कर रहा हूं उसके ऑफिशियल मैटर्स, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एम्प्लॉय हूं उसके मैटर्स हो, व्हाट्सएप के थ्रू। यहाँ खड़े खड़े मैं व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर रहा होता हूँ, वहां से जवाब आ रहे होते हैं, आपसे बात हो रही है, थोड़ी देर के लिए देखा, अप्रूवल भेज दिया, सब चीजें हो रही। वर्कप्लेस हम लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन फेसबुक का एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है वर्कप्लेस, जिसमें आप अपना एक ऑफिशियल एक पूरा सिनेरियो डेवलप करते हैं इन द ऐप। कौन सी प्रोडक्ट्स है, किससे बात करनी है, क्लाइंट लिस्ट क्या है, आज के टू डू टास्क क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स इन हैंड आपके सामने होने चाहिए, वो सब, वो डैशबोर्ड होता है, एक तरह का डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, सब चीजें आपके सामने आ रही होती है। आप कह सकते हैं ऑफिस की एडवांस फॉर्म भी आप कह सकते हैं, और हम आपकी यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लॉगिन करते हैं, जिसमें आपके हैंडआउट्स मौजूद होते हैं, आपके अटेंडेंस मौजूद होती है, आईसीएमई की पोर्टल वेबसाइट प्लस ये वही चीज, वर्कप्लेस वही चीज, जिसके थ्रू आप अपना सारा का सारा जो आपकी इंटरेक्शन, जो चीजें नीड ऑफ द वर्क है, रिक्वायरमेंट्स है, वो आप देख रहे होते हैं। ये फेसबुक की प्रोडक्ट्स है। फिर फेसबुक की प्रोडक्ट है नोवा। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट में तो मौजूद है, अकाउंट से रिलेटेड है, तो नोवा टेक्नोलॉजी के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, इसके ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो अटेंड करें, इट्स रिलेटेड टू द कैलकुलेशंस, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, सारी की सारी चीजें। नोवा आपको कनेक्ट करेगा डिजिटल करेंसी के थ्रू, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी जो है, इसमें आपका ये बिटकॉइन वगैरह आ जाती है। फिनटेक टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को फिनटेक कहते हैं, ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं। अभी क्योंकि इसमें चेक एंड बैलेंस मॉनिटरिंग जो कंट्रोलिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए अभी ये ऑन डाउट है, और बहुत सारी डिजिटल करेंसीज या क्रिप्टो करेंसीज जो पाकिस्तान में समहाउ बैन है, ठीक है, लेकिन आगे जाकर इट कैन बी, जब इसकी पूरी वो बन जाएगी, एक सिनेरियो डेवलप हो जाएगा कंट्रोलिंग का, तो तब ये चीज जो है आपके आएगी। लेकिन नोवा इज एन ऐप जो आपको ये सब चीजें सपोर्ट करती है। अच्छा, सरप्राइजिंगली नोवा वर्कप्लेस के बारे में आपको नहीं पता था, जबकि ये प्रोडक्ट्स आज की नहीं है, 3-4 साल पुरानी प्रोडक्ट्स हैं, फेसबुक की और मार्केट में मौजूद है। नेक्स्ट आ जाए आप, पोर्टल की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल, तस्वीर नहीं डाली मैंने। पोर्टल एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू आप वीडियो इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक पे वीडियो इंटरेक्शन, यानी कि एक पोर्टल के अंदर आपके पास स्काइप का लिंक भी होगा,
व्हाट्सएप वीडियो कॉल का लिंक भी होगा, मैसेंजर वीडियो कॉल का लिंक होगा, ईमो का लिंक होगा, पोर्टल का अपना लिंक होगा, इंस्टाग्राम वीडियो लिंक होगा। एक पिक्चर आप देख रहे हैं कि एक जो है फादर है या कोई बड़ा भाई है, वो अपने छोटे बहन भाई से बात कर रहा है और पूरा एक सिनेरियो क्रिएट हुआ होगा उसपे। ये तो आप लोग यूजुअली करते हैं, काम बन गए, मंकी बन गए, पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया मैसेंजर में, ये चीजें, ये सारी टेक्नोलॉजीज एक प्लेटफॉर्म पर जो फेसबुक पे मौजूद है, जिसको हम कहते हैं पोर्टल। पोर्टल के थ्रू, पोर्टल को आप इंस्टॉल करें, पोर्टल से कनेक्ट हो तो आप पूरी दुनिया में पोर्टल के थ्रू ये आसानी है कि अभी आप लोग का इंटरेक्शन नहीं है, हम क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूं, आप पे हैं, आप हैं, हम जब ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो ऑनलाइन मीटिंग से डिफरेंट ऑप्शन है। जूम है, यू नो अबाउट जूम, जूम के थ्रू से ऑनलाइन भी जा रहा है सेशन फेसबुक पे। फिर एक स्ट्रीम यार्ड है जो यूट्यूब पर जब बार बार उसका एडवर्टाइजमेंट आता है, आई एम अ स्ट्रीम यार्ड यूजर, स्ट्रीम यार्ड वर्किंग लाइक अ जूम, ठीक है। इसका तो और भी ऐप्स है। अब होता ये है कि मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक जनरेट किया, सामने वाला स्ट्रीम यार्ड यूज नहीं कर रहा, तो वो मुझसे कैसे कनेक्ट होगा? उसको स्ट्रीम यार्ड पे पहले आना होगा। अगर वो जूम क्रिएट कर रहा, मैं जूम पे नहीं हूं, तो मैं कैसे होगा? लेकिन पोर्टल एक ऐसी चीज है कि पोर्टल इंस्टॉल कर देंगे तो जूम है, स्ट्रीम यार्ड है, वो सब उस पोर्टल के थ्रू कनेक्ट हो जाए। पोर्टल एक साथ है, एक गेटवे है जो फेसबुक ने दिया है ताकि डिजिटल एप्स को सपोर्ट मिल सके। अच्छा, नेक्स्ट एक टेक्नोलॉजी है जो सब मार्केट में आ चुकी है, ऑक्यूलस। ऑक्यूलस हेडसेट जो आप आंखों में लगा रहे हैं और आप जो हैंड कंट्रोलिंग है, ये इस टेक्नोलॉजी का नाम है, इस डिवाइस का नाम है ऑक्यूलस। क्रिएटिंग न्यू वेज फॉर पीपल टू डिफाइन डिस्टेंस एंड कनेक्ट, यानी कि फासलों को दूर करेगा, बंदा यहां से वहां पहुंच गया, कनेक्ट करेगा विच ईदर एंड द वर्ल्ड अराउंड देम थ्रू वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी की मैंने एग्जांपल दी थी की रिसोर्स, थ्रू वर्चुअल रियलिटी वी कैन radically redefine the way people work, play and connect। किस तरह वो वर्क करेगा, किस तरह वो प्ले करेगा, गेम्स हैं, इंटरेक्शंस हैं, सोशल वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो करना है या फिर लोगों के साथ कनेक्ट करना है। ऑक्यूलस की प्रोडक्ट, ऑक्यूलस इज अ प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक, ठीक है। ऑक्यूलस इज अ प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक और ऑक्यूलस को अगर आपने उस ऐप को इंस्टॉल करना है जिसके थ्रू आप अपने हेडसेट को लगाएंगे, तो हेडसेट किस कंपनी का है? तो हेडसेट की एक ब्रांड का फेसबुक लेकर आया है जिसका नाम है क्विस्ट 2। फॉर एग्जांपल ऐप है आपके पास तो आप मोबाइल फोन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल फोन किस ब्रांड का है? मोबाइल फोन क्या अच्छा हो वो भी फेसबुक अपना लॉन्च कर। क्विस्ट 2 जो है वो एक तरह से मोबाइल फोन है एंड ऑक्यूलस लाइक एन ऐप। आप देख रहे हैं ऑक्यूलस, ये इस वक्त $299 का है, पाकिस्तान रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 52,687। आई थिंक ये जिस टेक्नोलॉजी में हमने एंटर होना है, 50-60 हजार की प्रोडक्ट कोई बड़ी बात नहीं है। उसको आप कनेक्ट करके खरीद कर ऑन करें और आप कभी भी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एंटर हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी पहली गेटवे है। खुलदा सिंह की कहानी सुनी होगी, बंदा एक पूरी दुनिया दूसरी दुनिया के अंदर जाता था तो क्या करता था, पत्थर के दरवाजा द्वारा घाट पे खुलता सिंह। या फिर एक वर्चुअल एक वर्ल्ड होती थी कि मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, मैट्रिक्स आपने, जिसमें दीवार के हर शो में हर पर्सन से गुजर नहीं सकता था आदमी, एक खास दीवार होती थी जिसके अंदर से गुजर सकता, गुजर के दूसरी दुनिया में जा सकता था। तो ये हेडसेट जो है ये आपका वो गेटवे है जो आपको दूसरी दुनिया में लेकर जाए। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट Oculus Quest की Horizon, Horizon वर्ल्ड, जिसमें Horizon वर्करूम है, Horizon होम है, Horizon अम्ब्रेला के अंदर Horizon वेन्यूज आ रहे। Horizon एक प्रोडक्ट है जो फेसबुक बेटा के अंदर मौजूद होगी, जिसके थ्रू कुछ Horizons आपको फ्री मिल रहे होंगे, कुछ Horizons आप परचेज कर रहे होंगे। फ्री के Horizons मतलब क्या हुआ, जैसे वीडियो गेम्स हैं वो आप परचेज भी करते हैं कुछ, और कुछ आपको फ्री ऐप मिल रहे होते हैं 3D वीडियो गेम्स। तो एक वीडियो गेम है जो अर्तुगरुल गाजी का सिनेरियो आपको दिखा रहा है, जब हेडसेट पे लगाएंगे तो आपको जो है अर्तुगरुल गाजी का एनवायरनमेंट नजर आ रहा होगा, आपको पूरा काई कबीला उसके वो तंबू नजर आ रहे होंगे, झंडा लहराता नजर आ रहा होगा। आप नीचे देखोगे तो घोड़े के काम नजर आएगा, घोड़े पे बैठे, ठीक है। अब वो ऐप है। दूसरे वीडियो गेम में क्या है, आप पबजी पे हैं,
आप एक किसी मुल्क की आर्मी का हिस्सा है, आप पहाड़ों पर जाकर जी मार रहे हैं लोगों को, दोनों अलग अलग सिनेरियो, ठीक है ना। एक वर्ड वर्चुअल वर्ल्ड, वो भी तो 4 साल का बच्चा देख रहा था स्कूल की एक्टिविटी में, चॉकलेट वर्ल्ड, चॉकलेट एनवायरनमेंट। ये क्या है? ये होराइजन। फेसबुक पे इसका नाम दिया गया है होराइजन। होराइजन में वर्क रूम्स भी है। फॉर एग्जांपल, आप कोई मैनेजमेंट का, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का वर्क रूम परचेस कर लेते हैं, आप उसमें जा रहे हैं, आपको और भी अवतार नजर आ रहे हैं, वहां पे और भी लोग मौजूद हैं। अवतार उसको क्यों कहते हैं, मैं बात से बात एक निकाल रहा हूँ। वो बंदा फिजिकली वहां मौजूद नहीं है, वो बंदा तो बैठा हुआ है लंदन में कहीं पे, लेकिन उसका अवतार यहाँ पर है। अब आया अवतार उसका बिल्कुल एक्चुअल है, या उसने कोई एनिमेटेड कार्टून की शक्ल की हुई है, या कुछ और कैरेक्टर करके रखा है, लेकिन अवतार इसलिए इसको अवतार कहते हैं। तो आपको वो अवतार नजर आ रहे हैं जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, या सप्लाई चेन के वर्क ग्रुप के होराइजन में एंटर है। आप ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जा रहे हैं, आपने ऐसा ट्रेनर बनना है, पब्लिक स्पीकर बनना है, तो पब्लिक स्पीकर का वर्क रूम पर फ्री में आपको मिलेगा। और वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर भी मौजूद होंगे, उनके अवतार भी मौजूद होंगे, और दूसरे ट्रेनर्स भी, दूसरे ट्रेनिंग भी मौजूद होंगे जो उसको ट्रेनर बनना चाहते होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाते हैं वर्क होराइजन होम। आप रह रहे हैं, थैंक यू, पानी बैठ के पीना चाहिए, मैं अनकॉन्शियसली प्रयोग कर दिया, सॉरी। अच्छा, होराइजन होम में क्या है, आपको डिफरेंट घर भी मिलेंगे होराइजन में। आप रह रहे हैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट में, या 3 कमरों के अपार्टमेंट के अंदर, या चले 200 गज के मकान के अंदर। होराइजन आपने परचेस कर ली विला। मम्मी अभी मुझे कोई काम नहीं देना, अभी मैं बैठा हूँ, हेडसेट लगाया, अब उसके अंदर आपके कोई महल नजर आता है, ये आपका कमरा है, जो चीजें जहां रखी थी वहीं पर रखी है। फिर जा रहे हैं, बाहर गए, पुल पे बैठ गए, हाँ यहाँ बैठ के अब मैं अपनी सहेली को कॉल करूँ, कॉल करूँ, हाँ हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है, इधर अम्मा देख रही परेशान होकर, ये सौगुन से उसका कोच पे क्यों बैठ गई, वो बेचारी अपने कमरे से निकलकर स्विमिंग पूल वाले इलाके में जाकर, ठीक है। ये बड़ी फनी वो है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ दैट, जो जब रियलिटी की चीज आएगी। तो होराइजन जो है वो 3D स्पेस है, वो 3D स्पेस जो होराइजन के ब्रांड नेम के तले है, और होराइजन इज अ ब्रांड नेम ऑफ फेसबुक मेटा। नेक्स्ट है होराइजन वेन्यूज। होराइजन वेन्यूज आपको पता है, सब दुबई एक्सपो हो रही, 6 महीने की एग्जीबिशन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्जीबिशन। आप लोग यहाँ बैठे बैठे होराइजन में जाकर दुबई एक्सपो का होराइजन परचेस करने, उसका वेन्यू परचेस कर लिया, टिकट मिल गया, वहां जाके घूम रहे, वहां जाकर आप जो है पूरा वो फेसबुक का वो सब देख रहे हैं कि किस तरह से क्या है, क्या उस पे पूरी है ना। आप उस पे एक्सपो में देख रहे हैं कि पाकिस्तान पवेलियन में जाके देख रहे हैं कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह से क्या है, हालांकि आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपने सारा सिनेरियो वैसे ही देख लिया जैसे कि एक्चुअली मौजूद था या मौजूद है, ठीक है। पीएसएल का मैच, पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में आपने मिस कर दी, अरे यार मैंने मिस कर दी, आपने सिर्फ वेन्यू पे गए, होराइजन में 3D हेडसेट लगाया, अब पीएसएल में आपको लग रहा है वहां उसमें बैठे हुए किसी यूजर के अंदर, और सामने आपके इवेंट चल रही है, एक्चुअली सेम टाइम सेम सिनेरियो जो रियल में चल रही है। इवन के वो सब जो वहां पर हो रहा है वो आपको वहां पे नजर आ रहा है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने गुब्बारे से भी झंडा उड़ाया, गुब्बारा टूटा और झंडा आमा देख के गाने की परफॉर्मेंस के ऊपर सर पे गिर गया, वो भी आपने वहां देख लिया। जब बाहर निकले तो जो बंदा गाड़ी पार्क करके आ गया, बड़ा मजा आया, नेशनल स्टेडियम से आया, हाँ यार झंडा गिर गया था ऊपर, वो कहता तुम्हें कैसे पता, मैं भी तो वहां बैठा हूं, आप भूल क्यों नहीं करते, ठीक है ना। इसी तरह से ई फेस्टिवल हुआ, ई फेस्टिवल में मैंने जाना था, कराची में हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि वो टिकट सोल्ड आउट हो गई, अरे यार अब मैं कैसे देखूं। खैर ई फेस्टिवल वर्चुअली इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, मुझे खाना खाना है और उसको हजम करना है, और उसकी न्यूट्रिशन अपनी बॉडी पे लगानी है, सिर्फ विजुअल से काम नहीं करना है।
ठीक है, अच्छा जी, तो ये होराइजन है जिसको मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया समझाने के लिए। ये आप देख रहे हैं डिफरेंट होराइजन है, एक मॉल का है, एक कोई मेरे ख्याल से कोई गेमिंग जोन है, एक ऑफिस एनवायरनमेंट है, एक कोई होम का कमरा है, कोई जहाँ पर फ्रेंड्स मौजूद है, उसका पूरा सिनेरियो आपको दिखाया जा रहा है। फिर एक प्रोडक्ट है प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया। प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ऑक्यूलस। ऑक्यूलस जो हेडसेट टेक्नोलॉजी है उसका नेक्स्ट फेज है प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया। प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया को मैं सिंपली बात बोलूंगा, इसका डिफरेंशिएशन तो आप बाद में देख सकते हैं, तो काफी टाइम पूरा 1 घंटा उसको बताने में लग जाएगा, लेकिन ये है कि ये एडवांस फॉर्म है। प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया और मार्क जुकरबर्ग उसकी पूरी प्रेजेंटेशन दी है मार्क जुकरबर्ग ने कि प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया के थ्रू आप अपने ऑक्यूलस प्रोडक्ट, यानी मार्क जुकरबर्ग से पूछेंगे ना, वो कहेगा ऑक्यूलस इज लॉन्च्ड, वो तो 6 महीने हो गए लॉन्च किए हुए, अब तो मैं आगे की प्लानिंग कर रहा हूँ। हम अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ और आप लोग उसको हैरानी से सुन रहे हैं, यार दुनिया में चीज तो जब वहां से डिस्कार्ड होंगे ना ऑक्यूलस, तो फिर रिफर्बिश ऑक्यूलस यूनि सेंटर में और वो कौन सा है वो आईएफ लेवल पे जो है कंप्यूटर के वहां में मिलते होंगे। प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया आ गया, फिर प्रोजेक्ट नजारे। प्रोजेक्ट नजारे क्या है, इसमें आप बैठे बैठे नजारे देखेंगे, चश्मा, वही सनग्लासेस, स्मार्ट ग्लासेस। स्मार्ट ग्लासेस को प्रोजेक्ट नजारे का नाम दिया गया है कि वो बहुत इसमें बहुत सारी चीजें जो ऑक्यूलस के अंदर हैं वो स्मार्ट ग्लास में शिफ्ट कर दी गई। यानी कि स्मार्ट ग्लास और हेडसेट में फर्क क्या है, स्मार्ट ग्लास लगाएंगे तो आपको रियल वर्ल्ड भी नजर आ रही है और रियल वर्ल्ड मुझे आप भी नजर आ रहा है, आप भी नजर आ रहे हैं, आप भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके सामने मुझे कुछ और भी चीजें नजर आ रही हैं जो स्मार्ट ग्लासेस के थ्रू नजर आ रही है। आपने भी लगाया तो आपको भी नजर आ, लेकिन ऑक्यूलस जो था उसमें अगर हम उसको लगाते थे, हेडसेट को लगाते थे नए एनवायरनमेंट में, तो उसकी बहुत सारी एडवांस चीजें ट्रांसफर कर दी है स्मार्ट ग्लासेस के अंदर, जिसका नाम रखा है प्रोजेक्ट नजारा। अब आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट मैच में, चलो थोड़ा जल्दी इसको कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ। इसमें है माइक्रोसॉफ्ट मैच में जो पहली प्रोडक्ट आ रही है वो आ रही है HoloLens। HoloLens इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट बाराबू। प्रोजेक्ट बाराबू एक नाम रखा गया है जो कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसने रखा है। और HoloLens जो है, HoloLens क्या है, HoloLens देखेंगे तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये क्या चीज है, स्मार्ट ग्लास, वहां पे प्रोजेक्ट नजारे के थ्रू आ रही थी चीज, यहाँ पे HoloLens के थ्रू आ रही है, प्रोडक्ट सेम। इसमें आप देखें होलोग्राफिकल गूगल, होलोग्राफिकल चीजें आपको नजर आ रही है जो रियल में नहीं है लेकिन सामने नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि जी मैं आपकी मुलाकात फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग से करवा रहा हूं, अब वो वीजा लगाकर टिकट लगाकर यहाँ नहीं आएंगे, मैं कहूंगा आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हैव अ HoloLens, आप सब लोग अपने HoloLens पे काम आपको लगा, मैं भी लगा लूंगा और उसके बाद यहाँ पर वर्चुअली मार्क जुकरबर्ग नजर आ, यानी कि होलोग्राफिक जो चीज है जिसके लिए हमें डिवाइस की रिक्वायरमेंट थी, अब हमें डिवाइस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जो प्रोजेक्ट नजारा है और ये जो HoloLens है प्रोजेक्ट बाराबू के थ्रू जो है ये चीज आ रही है। VR हेडसेट, ये आपका वर्चुअल रियलिटी के हेडसेट्स, ये आप देख रहे हैं थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हेडसेट्स के साथ जो है पूरी एक स्टीयरिंग टाइप की चीज दी हुई है, पूरा हैंडल दिया हुआ है जिसके थ्रू आप पूरी चीज को डेवलप कर रहे हैं, आप वर्चुअली गाड़ी भी चला सकते हैं, वर्चुअली किसी सिमुलेशन पूरे क्रिएट हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी चलाना सीखना है, आप घर में बैठकर गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, आपने शिप चलाना है, आपने हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग करनी है, सिमुलेशन के थ्रू आप चीजें कर सकते हैं। और इसको पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वहां पर पूरी की पूरी सिमुलेशन थी। आप में से कितने लोगों ने अभी रिसेंटली मूवी आई है, टेलीफिल्म आई है, आईएसपीआर ने बनाई है, अंगोर सबमरीन। अंगोर में शुरू में हमने देखा था सिद्धार्थ शेख जो है जो आपके जमाने में दिखा रहे हैं, वो एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर बैठा हुआ था सबमरीन जैसा, असल में वो सबमरीन के अंदर नहीं था और उनको पूरा सिनेरियो दिया गया था और वो सिनेरियो टाइम लिमिट्स बाउंडिंग सब चीजों के रहते हुए वो उस तरह बिहेव कर रहे थे। वो एक तरह का वीडियो गेम खेल रहे थे जिसके अंदर वो रियल सिनेरियो की प्रैक्टिस कर। अच्छा, ये हेडसेट की मजीद एक नई एडवांसमेंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट लेकर आ रहा है। अब आपको अंदाजा होगा कि मैंने कहा था
कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो पूरी वर्चुअल मेटावर्स लेकर आ रहा है, यूनिवर्स, जबकि फेसबुक सिर्फ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है। अभी भी यही है। माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक ऑक्यूलस लेकर आया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑक्यूलस के साथ साथ प्रोजेक्ट बैरागो में रहते हुए हॉलोलेंस लेकर आया है, अब ये लेकर आया है HTC Vive। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। इन जब भी टाइम मिले, बजाय इसके कि हीरा मानी का कौन सा नया ड्रामा आ रहा है या मरियम नवाज की बेटी की शादी में जो लहंगा पहना था किस डिजाइनर ने बनाया है, इन प्रोडक्ट्स को सर्च करें, इन पे क्लिक करेंगे तो आगे जब जाएंगे 2 साल के बाद 3 साल के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, तो आपको पता होगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स तो मौजूद हैं। क्योंकि हम एक अलार्मिंग सिचुएशन में जब चेंज मैनेजमेंट आती है, अगर आप चेंज नहीं होंगे तो आप बहुत पीछे रहते हैं। उस वक्त आपको चेंज करना है अपना, ठीक है। जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया, जिस चीज से कंप्यूटर रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया वो मौजूद है। हमारे अपने ऑफिस में एक बड़े बूढ़े थे, 25-30 साल से काम कर रहे थे, कंप्यूटर चलाना उनको नहीं आता था। उनको पहले टर्मिनेट किया गया, निकालने की कोशिश की गई, फिर मैंने उनको मैनुअल उस पर लगा दिया कि नहीं सर, इनको निकाले नहीं, इनको रिसेप्शन पे कर दिया। रिसेप्शन में भी IVR सिस्टम लगा हुआ है, सब चीजें वो भी बेचारे चला नहीं सकते, तो उनको मैंने फाइल कर दिया। मैंने कहा यार, एक तो बच्चों वाले हैं, वो है, सब है, टाइम अपना किल कर रहे हैं, बच्चों की शादियां हो गई हैं, उनकी नौकरी इसको होना है। लेकिन बात ये है कि बंदा इतना ऑड में आउट हो जाता है। अच्छा, एक जैसे कि मैंने 3D स्पेस का जिक्र किया था, होराइजन। होराइजन का प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट में होराइजन किस नाम से? एड स्पेस वर्चुअल रियलिटी। यहाँ पर एड स्पेस के नाम से वही चीज है, इसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर मैकवेट, मैकवेट एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर पूरा ऑफिस क्रिएट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबमरीन का एक सिमुलेशन बनाया गया है। वो ऑफिस पानी में नहीं जा रहा है, वो जमीन के ऊपर ही है, लेकिन वो आपको सारा सिनेरियो दे रहा है। अगर वहां पर माइक्रोसॉफ्ट मैकवेट को इंस्टॉल कर दें तो वो सब चीजें वर्किंग में आ जाएंगी। मेरे ख्याल से वहां पर वही चीज की भी होगी, क्योंकि पहले ये आम फोर्सेस में इंप्लीमेंट होती है चीजें, फिर उसके बाद आम पब्लिक तक वो चीजें पहुंचती हैं। फिर ये आगे और टेक्नोलॉजीज हैं, मैं अब इसको वाइंड अप करता हूँ और आखिर में समरी में पहुंचता हूँ। 5 चीजें मेटावर्स में जाना है तो 5 चीजें ध्यान में रखनी होगी, मालूम होना चाहिए आपको। फिर वर्चुअल वर्ल्ड क्या चीज है, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी क्या चीज है, अवतार एंड अदर पीपल्स क्या चीज है, परसिस्टेंस एंड कनेक्शन टू रियल वर्ल्ड। आखिर की 3 चीजों को हल्का सा ब्रीफ करूंगा मैं। अवतार, अवतार में 3 तरह के अवतार आपको नजर आएंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, 3 तरह के अवतार। एक अवतार जो रियल ह्यूमन का अवतार मौजूद है, एक अवतार जो कि ह्यूमन नहीं है, रोबोटिक है, वर्चुअली क्रिएट किया गया है। और या बड़े-बड़े साइंटिस्ट उनके अवतार, मतलब एक जो वीडियो है, अगर उसको आप देखें तो उसमें बता रहे हैं कि किस तरह और उसके हर चीजें फील करनी होगी जो एक एक्चुअल ह्यूमन में थी। खाना पीना होती थी और कैसे बिहेव करता था, क्या था। चले हम दूसरी श्रेणियों में आते हैं। हमें एक साइंटिस्ट चाहिए, हमें आइंस्टाइन का एक अवतार बनाना है और वो अवतार गूगल प्ले पे होना चाहिए ताकि कोई भी कभी भी आइंस्टाइन को बुला ले। आइंस्टाइन सामने बैठा हुआ कुर्सी पे, स्मार्ट ग्लास लगा है, आइंस्टाइन सामने बैठा है, नहीं नहीं बैठा है, आइंस्टाइन नहीं है, ये आइंस्टाइन है, ठीक है। मुझे लगता है कि किसी होगी। अब आइंस्टाइन का अवतार बनाने के लिए आइंस्टाइन की तो सारी चीजें फिट करनी होगी जो एक्चुअल आइंस्टाइन के अंदर थी। तो बनाने में 1-2 महीने नहीं, कुछ साल लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे, तब जाकर एक अवतार बनेगा आगे की जनरेशन के लिए। तो 3 तरह के अवतार हैं। और आगे जाकर आप कोई फुटबॉल गेम खेल रहे हैं तो पता चला कि फुटबॉल गेम में 11 बंदों की टीम है, तो उसमें जो है 4 तो रियल वर्ल्ड से मौजूद है, जो रियल आपके दोस्त हैं, 4 जो है रोबोट से, जिनका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, रोबोट है, उनके साथ भी आपकी वैसी दोस्ती है, वैसी बातचीत है, वो भी आपसे वैसी शिकवे कर रहे हैं। 3 दिन हो गए, आप आ जाओ, तुम बैठ के, मैं कब से वेट कर रहा हूं, ऐसा रास्ते पर खेल रहे हैं, ठीक है ना। 2 बंदे ऐसे हैं जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वो भी मौजूद है, वो भी आपके साथ। तो बड़ी आगे जाकर बड़ी अजीब सिचुएशन हो सकती है कि लोग, एक बंदा कहेगा कि मेरे 4 दोस्त हैं,
दो रियल है, एक रोबोट है और एक डेड मैन जो दुनिया में नहीं। जी जी बिल्कुल एंडिंग लास्ट 2 मिनट सर, मैं 1 मिनट में बताऊंगा। परसिस्टेंस क्या है? वर्चुअल वर्ल्ड इज अवेलेबल व्हेनेवर यू वांट टू विजिट, यानी कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट उस वक्त जरूरी, वो चीज जरूरी है कि जिस वक्त जिस चीज की जरूरत हो वो चीज मौजूद हो। तो वर्चुअल वर्ल्ड इतनी रिस्पॉन्डिंग होनी चाहिए कि अब मैं पहली स्लाइड पे जाऊंगा कि मैं जॉगिंग कर रहा हूँ और इमीडिएटली मुझे चीज चाहिए तो रैक सामने आ गई, उसको मुझे पूछा कि आप क्या क्यों फूल के गिलास से पिएंगे, कांच के गिलास से पिएंगे, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, ठंडे में पिएंगे, गर्म पिएंगे, जो है ना। एक बेटा का चित्राना नहीं चाहता था तो लंबे चौड़े सवाल किए उसने, ऐसे किसी सवाल की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, कनेक्शन टू द रियल वर्ल्ड। कनेक्शन टू द रियल वर्ल्ड, आपकी रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन होगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके डिजिटल वर्ल्ड आपके रियल वर्ल्ड की डिजिटल ट्विन है, कितनी ही इफेक्टिव होगी इसकी रियल वर्ल्ड। तो दिस इज अबाउट द मेटावर्स। होप कि एक जो एनिग्मा हमारे जहनों में मौजूद है कि जी क्या चीज होगी है, किस तरह से काम करेगा, वो चीज मैंने आप लोगों को बताई। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वीडियोस के लिए मैं अभी टाइम कम है, वीडियोस में अभी प्ले नहीं कर रहा, आप परेशान हो रहा है एकदम वीडियो देखिए। सिंपल YouTube पे जाओ, मेटा फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, 11 मिनट की वीडियो है समरी, वो बैठ के देखो आराम से, उसमें वो उसको अगर वो सबटाइटल्स भी आ रहे हैं वो है वो देख के समझ लो। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट डैश की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, 2 वीडियो YouTube पे आ गई है, माइक्रोसॉफ्ट के उसमें YouTube पे जाए, वहां पे मैश की वीडियो को इंट्रोडक्शन पे क्लिक करें, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो वो सारी जो चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी चीजें वहां पर कनेक्ट होंगी, क्योंकि इस सेशन का वाइंड जो रैपिंग थी वो वीडियो के थ्रू थी, तो वीडियो अभी रह गई तो रैपिंग आपने खुद कर दी। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा एक YouTube चैनल है, उसको काइंडली आप लोग सब्सक्राइब करें, उसमें सेशन भी मौजूद होगा। YouTube चैनल जो है उसका नाम है BAMM BAM TV PK। BAM stands for Brand Advertising Media Marketing, BAMM TV PK, BAM TV PK, उस पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। आपके पास चलिए बताइए। Thank you very much, Kamran. It was a wonderful session. I hope आप लोगों ने बहुत कुछ इस सेशन से लर्न किया होगा, और ये सारी चीजें फ्यूचर की हैं, and future is all based on technology and you have to equip yourself with technology. मैं आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, शायद आप लोग ये सुन के डिसहार्ट भी होंगे, टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों। मेरे दोस्त है, बल्कि दोस्त भी मेरे कजन है, अमेरिका से आए थे और वो काम करते हैं इसके ऊपर, एआई की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। उन्होंने बताया है ये बहुत सारी जाके जॉब्स खत्म हो जाएंगी। मैंने बोला अच्छा ये बताइए चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या होगा? कहने लगे अकाउंटेंट भी फारिग हो जाएंगे। सीरियस बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये इतनी खतरनाक चीज है। जिस ब्रांच के अंदर बैंक की 15 लोग होते थे, वो ब्रांच आ जाएगी 4-5 लोगों पे और सारा काम हो रहा होगा। बैंक में पैसा डालना, बैंक से पैसा निकालना सब मशीन कर रही होगी। तो मशीन हमारी एक तरह से दुश्मन भी है, मगर क्या करें, टेक्नोलॉजी के साथ हमें जीना भी है। तो अपने आप को कहते हैं ना, चेंज इज मैंडेटरी इफ यू वांट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। अपने आप को इक्विप करें और अपने आप को अपग्रेड करते रहें और टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिला लें। अपने आप को आप जितनी भी चीजें आप लर्न करते जाएंगे उससे आप अपग्रेड भी होते जाएंगे, कनेक्टेड भी रहेंगे। इन्होंने बहुत अच्छी बात की। आप सब इनको गूगल कर सकते हैं, इनके यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और कभी भी किसी किस्म की आपको कोई एडवाइस चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, मेंटोरिंग चाहिए, तो कामरान इज देयर अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। ही इज अ वेरी पॉपुलर गाय, माशाल्लाह, ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। तो आप लोग इनसे कनेक्टेड हैं। बाकी ये कि मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि अपने आप को ट्यून करें, अपने आप को इक्विप करें, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो आज कामरान ने बहुत सारी चीजें बताई हैं यहाँ पे, इनको खुद जाके इनके बारे में रिसर्च करें, देखें, पढ़ें, समझें कि क्या फ्यूचर में चीजें आने वाली हैं हमारी लाइफ में। तो आई थैंक यू कामरान पर्सनली
इंशाल्लाह मेरे ख्याल से शख्स को भी बुला लें तो उसको हाँ आई होप यू गाइस एंजॉय किया आप लोगों ने, बोर तो नहीं हुए? वंडरफुल। तो यहाँ पे मैडम आ गई, मैडम प्लीज। इंशाल्लाह हम फिर किसी टॉपिक के साथ, किसी और ट्रेनर के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सब लोग थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस शो। ओके थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स के आपने एक यकीनी तौर पे डिजिटल इंफॉर्मेशन के हवाले से आज का सेशन देखा होगा। बस अभी 5 मिनट वेट करें, ताकि ब्रांच काउंसिल के हमें चेयरमैन से सेक्रेटरी ज्वाइन करने वाले, तो शील्ड जो है वो प्रेजेंट की जाएगी। फिर उसके बाद हम सब कैफे एरिया जाएंगे जहाँ रिफ्रेशमेंट आपका वेट कर रहे हैं। तो बस फिर 5 मिनट थोड़ा सा वेट कर दीजिए। Any questions? If you have, I think वो काफी अच्छा session है। वहां पे तो मौजूद हो रही है। आपने देखा मार्क जुकरबर्ग किस तरह से मीटिंग्स इसको कंडक्ट कर रहे हैं, किस तरह से बिल गेट्स इसको मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं। आपका जो पॉइंट है वो मैं समझ रहा हूँ, कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टारगेट होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों पर प्रेशराइज होता है टेक्नोलॉजीज के हवाले से, कहीं ना कहीं हमें स्लेव बनाया जाता है कि हम इन चीजों का स्लेव बने। लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हमने कितना स्लेव बनना है, कितना नहीं। एक छोटी सी एग्जांपल, पबजी गेम है, पबजी इज अ नॉर्मल गेम, नथिंग स्पेशल। पबजी को स्पेशल और खौफनाक हम लोगों ने खुद बनाया है। हम छोटे बच्चे थे तो 3 घंटे की वीडियो कैसेट आती थी जिसमें पिंक पैंथर और टॉम एंड जेरी के कार्टून होते थे। मेरा कजन था, वो सुबह से लगाता था, खत्म होता था, दोबारा लगाता था, खत्म होता था, दोबारा लगाता था, शाम तक बैठ के टॉम एंड जेरी के कार्टून रटता था बैठ के। वो न खाता था ना पीता। मैं एक बार चलाता था क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे टाइम दिया हुआ था। तो चेक एंड बैलेंस चीज होगी तो प्रॉब्लम नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं होगी तो प्रॉब्लम है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। जब मैं ये चीज अटेंड कर रहा था एज अटेंडी, जब अवतार बताया गया तो मैंने एक सवाल किया कि सर इज दैट पॉसिबल कि एक लड़की अपने बाप के पास जाएगी, कहेगी पापा मैं इस बंदे से शादी कर रही हूँ। वो कहेगा ये बंदा कौन है, कहेगी ही इज नाइदर रियल नॉट डेड, ही इज अ रोबोट। वो नॉर्मल रिएक्ट कर रहा होगा, वो हर चीज बात कर रहा होगा, हर चीज इंटरेक्ट कर रहा होगा आपके साथ, की सोच समझ हर चीज कर रहा होगा। तो क्या ये चीज हमारे शरीयत के हिसाब से ऑथेंटिक है? इमेजिनेशन के साथ शादी करना है, आप एक इमेजिनेशन के साथ, तो ये चीजें खतरनाक हद तक जा सकती हैं। लेकिन हमने इसको कहा, ठीक है ना, फैमिली के बीच में बैठते हैं तो हम एक लिमिटेड टाइम के लिए मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं। लेकिन वो चीज बैड मैनर्स मानी जाती है कि जब मुस्तकिल बंदा मोबाइल फोन यूज करता रहे अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में बैठकर, उनको टाइम ना दे। मैं आपकी उसकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि इस लाइक का मुझे भी लगता है कि शायद मैं प्रोडक्ट सेल करने बैठा। भाई आई एम नॉट अ सेल्समैन, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। मैं तो टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ। अब टेक्नोलॉजी में पहला सवाल ये होता है सर ये जी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मेरा उसमें कोई कमीशन नहीं है। क्योंकि अगर मेरा कमीशन होता तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठा होता, मैं न्यूयॉर्क में किसी बहुत बड़े विला में बैठा होता, ठीक है ना, क्योंकि पूरी दुनिया में ऑक्यूलस बेच रहा होता। तो मैं आपके पॉइंट को समझ गया हूँ।
एक लिमिटेशन होनी चाहिए हर चीज की, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी इज नॉट बैड इनफ, लेकिन वो वक्त जितने भी टेररिस्ट हैं बिटकॉइन के थ्रू डील कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू डील कर रहे हैं। इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी को जो है ये सब बैन करार दे दिया है। जब अप्लाई होगी, जब इसकी मॉनिटरिंग हो जाएगी, जैसे कि एक्चुअल करेंसी की मॉनिटरिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है और वो एक अगेंस्ट गोल्ड रिजर्व जनरेट, यानी कि जितने भी नोट छापता, तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। मेरा मकसद ये है कि आप जो है इसके हेल्थ डिजास्टर के बारे में बताइए, जिसकी आई डैमेजिंग होती है, इससे हेयर लॉस होते हैं, इससे जो है बंदा जो है वो अपने खाने पीने की हैबिट में काफी जो है वो अपना खाना पीना छोड़ देता है और 25 साल के बच्चे मेरे पास में हार्ट अटैक हो रहा है। बिल्कुल ब्रदर, बात सुनो, मेरे पास वीडियो है, उसमें मैं चला नहीं पाया, वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए हेडफोन लगाकर एक्सपेरिमेंट किया गया कुछ लोगों को, 24 घंटे, लाइक अ बिग बॉस, वो 24 घंटे लगाया, घूम रहा है, फिर रहा है। जब वो 24 घंटे में उसने हेडफोन हटाया है, अपना हेडसेट हटाया है, तो उसको नॉर्मल वर्ल्ड में आने के लिए 3-4 घंटे लगे, क्योंकि वो कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है, और वो खुद हंस रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज ऐसे, यहाँ पे यूं है, शॉक्ड हो रहा है कि यहाँ पे चीज मैंने यहाँ रखी थी, यहाँ पे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया। तो बेसिकली करने ही चाहिए कि सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए इसको यूज करें, टेक्नोलॉजी के साथ करें, अवेयर करें। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं, कितनी देर की करते हैं, आधे घंटे की, पौने घंटे की, खत्म। उसके बाद आप नॉर्मल बैठा, जो कानों पे हेडफोन लगाए होते हैं और यहाँ पे दांत के साथ अपना वो माइक फंसाया हुआ होता है, और मुस्तकिल वो बाइक रक्षा में आप यहाँ से क्लिफ्टन जाएंगे 2 घंटे का सफर करने, 2 घंटे वो बातें कर रहा है, अपने गाँव में बैठ के पैसे भी ले रहा है, सब चीजें कर रहा है, कनेक्टेड है वो उधर, ठीक है ना। चेक मेरा मकसद ये था कि आप जो है इसके साथ-साथ उसके हेल्थ डिजास्टर के बारे में भी एक्सपेक्ट सर देखिए, हर चीज हम ज्यादा यूज करेंगे तो डेफिनेटली हेल्थ डिजास्टर्स कुछ पड़ती है, लेकिन पुराना टीवी अगर देख रहे हैं हम, डब्बा जो पुराना टीवी होता था, उसके अंदर से ऐसी वो निकलती थी, लेजर्स निकलती थी, जो आपके आंखों को डैमेज करती थी। लेकिन अब एलईडी जो आ गए हैं, एलईडी जो आप लगाते हैं, प्लाज्मा स्क्रीन जो है, उसमें वो चीज नहीं है, ठीक है ना, वो चीज आ गई है। कंप्यूटर का वो दौर भी मुझे याद है कि जब हम डब्बा कंप्यूटर मॉनिटर यूज करते थे और एक ब्लू कलर की स्क्रीन सामने लगाते थे ताकि आई डैमेज ना हो। आज इस लैपटॉप से वो हमें प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो अभी जो चीजें आई हैं, एक लिमिटेड टाइम के लिए अगर आप हेडसेट लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर मुस्तकिल लगा लेंगे तो प्रॉब्लम डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी को उतना ही इस्तेमाल करें जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, और जितना रियल वर्ल्ड के साथ रियल में कनेक्ट हो, उतना ज्यादा अच्छा। आज के मैंने बताया कि वो रोबोट है आपसे एक टाइम आया था कि एक शादी करना चाहती हूँ, तो उसके अंदर फीलिंग कौन थी? अब ये मैं आपको बताऊं, देखिए बात सुने, हमने स्मॉल वंडर एक मूवी थी बच्चों की, स्मॉल वंडर के एपिसोड उसकी यूट्यूब पे मौजूद हैं। रोबोट में जो फॉर एग्जांपल रोबोट के अंदर आपने एक चीज फीड की कि एक फीमेल रोबोट बनाई आपने, आप उसके अंदर एक चीज फीड कर दी कि जैसे ही तुम्हारी शादी की बात हो फौरन आंखों में पानी ले आओ। अब जैसे ही अब्बा बैठ के बात कर रहे हैं रोबोट बेटी के साथ, तुम्हारी शादी भी करनी है, पप्पा ने वो फीड वही आ रही है जो फीड की गई है। तो एक चीज है कि अभी भी अल्लाह कादिर है, अल्लाह बड़ा है, जो चीज कंप्यूटर में सामने आएगी वही फीड करें। अगर आपको याद हो, बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि वो ऐश्वर्या राय को किडनैप करके ले जाते हैं भाई साहब, ठीक है ना, और वो सारी फील्ड्स के साथ मौजूद होते हैं, लेकिन वो फील्ड पीछे से डाली किसने होती है, उसी ह्यूमन ने डाली होती है। तो जितनी फील्ड डालेंगे उतनी फील्ड है, लेकिन फिर भी वो रियल ह्यूमन का वो रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। इतना जरूर है कि हम जब अकेले बैठे होते हैं तो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का सहारा लेते हैं, तो उसकी बजाय हम किसी रोबोट दोस्त से दोस्ती कर लें, उससे बातें करें, तो उसकी जो कहते हैं ना औकात, वो उतनी ही है, इंसान की जो औकात है उसको वैसी रहे। थैंक यू। एनी जी, जैसे कि आपने क्रिप्टोकरेंसी का बताया जी, तो क्रिप्टोकरेंसी ये पूछना है कि ये इस्लामिक शरीयत के मुताबिक है या फिर सर बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है।
क्योंकि इसमें जो बारीकियां बहुत है, क्योंकि इसमें मैंने इस्लामिक फिनटेक की जो वर्कशॉप्स हैं, IBS इस्लामिक स्कॉलर्स ये कहते हैं कुछ सिनेरियो में चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वेल्थ को ईज करके डिस्ट्रीब्यूट करना शरीयत में है, जो क्रिप्टोकरेंसी करेगा, ये कर रहा है, लेकिन वेल्थ को अनकंट्रोलेबल वे में बढ़ाना, इतना बढ़ा देना कि गरीब बहुत गरीब हो जाए, अमीर बहुत ज्यादा गरीब हो जाए, तो ये शरीयत में अलाउ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जखीरा अंदोजी अलाउ नहीं है, जबकि जखीरा अंदोजी इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, कि प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट को रोक दो। मार्केटिंग में पढ़ते हैं हम लोग, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड रेज करने के लिए सप्लाई को रोक दो, इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है, बट ये चीज आती है जखीरा अंदोजी में और शरीयत में अलाउ नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी भी कुछ ऐसे ही कुछ चीजें के साथ है। मैं प्रोडक्ट को गैर शरई नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसके अंदर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जो हो रहा है। और उसमें बताया जो हमारे जो मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब, इसको पर्सनली देख रहे हैं। मेरी खुद 3 मीटिंग्स फवाद चौधरी की हुई है, जिसमें मैंने उनकी वर्किंग को सुना है, फिनटेक को लेकर, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, इसको लेकर किस तरह से वो लेकर चल रहे हैं इसको। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अप्लाई कर दी है, लेकिन वो अभी चल रही है इजी पैसा, जैश कैश के थ्रू। वो ब्लॉकचेन दुनिया के साथ जब कनेक्ट होगी तो क्रिप्टो करेंसी के साथ कनेक्ट होगी। तो अभी तक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और ये जरूर I have 2 questions. Yes. एक आपने augmented virtuality और उसकी बात की, 2 टेक्नोलॉजी की बात की, तो ये अभी किसी और कंट्रीज के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज में ऑलरेडी है? बिकॉज़ हमने वर्चुअल टेक्नोलॉजी तो देख ली है, बिल्कुल हमने बहुत सारी जगह पे देखे कि वर्चुअल ये प्लानिंग, जब हमारा सपोर्ट ज्यादा थी तब प्लानिंग है उसको वर्चुअल जॉब फेयर पे लेकर जाए इंस्टेड ऑफ फिजिकल जॉब फेयर। तो बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, वर्चुअल एग्जीबिशन को हम लोग कर रहे हैं, और वर्चुअल 3D एग्जीबिशन भी हो रही है, रूम्स हम ऑलरेडी रूम्स होते हैं, आप उसको मूव कर रहे होते हैं। बट व्हाट अबाउट ऑगमेंटेड रियलिटी जो बात कर रहे हैं? देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी इस वक्त दुबई में तो मौजूद है, लेकिन उस सिनेरियो पे वैसे नहीं है जैसे हम फिक्शन फिल्म में देखते हैं कि मुझे ऑगमेंटेड रियलिटी में जो चीज मैं चाहता हूँ कि इमीडिएटली हो जाए, वो बड़ी अच्छी चीज है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और स्वैप यूं करूँ और यहाँ स्क्रीन आ जाए और स्क्रीन पे टच करूँ, चीज सामने हो, स्वैप करूँ, आप लोगों के सामने आ जाए, इस तरह। वो चीज जो है अभी ऑन थ्योरी विद टेक्नोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट्स मौजूद है, लेकिन अगेन वो चीज अभी तक थॉरोली हर जगह अप्लाई नहीं हुई है। लेकिन इस वक्त तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे 3 जो रीजन्स में कहूँगा, कंट्री रीजन्स जो इसमें बहुत एडवांस लेवल पर चल रहे हैं। एक यूएस स्टेट्स, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा आपका यूएई, और तीसरा चाइना। चाइना बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी में इसको वर्क कर रहा है। और एक क्वेश्चन व्हिच इज रिलेवेंट टू आवर फील्ड विद दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमने बात की, तो इनका जो रोल ऑफ अकाउंटेंट्स है वो इवॉल्व किस तरह से होगा और हम कंट्रीब्यूट किस तरह से कर सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है हमने बहुत सारी बात की कि मूविंग टुवर्ड्स मोर ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल पार्ट, तो अभी जो रोल ऑफ अकाउंटेंट्स है वो इवॉल्व किस तरह से होगा या इनके लिए क्या बेनिफिट होगा? देखिए सिंपल ये है कि बेनिफिट बहुत ज्यादा है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पहले अगर आप लोग पीएचडी करते थे तो उसके लिए जो है लोग कहते थे 10-10 साल लगते हैं, कि कराची यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सुबह शाम रात बैठना पड़ता था, लेकिन आज हम डिजिटली बैठ जाते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आ जाते हैं। मैं एग्जांपल क्यों दी है मैंने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, एक ऑडिटर है, एक ऑडिटर को बड़ी बड़ी बॉक्स फाइल्स लेके बैठना होती है, उनका सिनेरियो, उनकी रिकंसिलिएशंस, बैंक स्टेटमेंट्स की सारी रिकंसिलिएशंस, रिसिप्ट्स की सारी रिकंसिलिएशंस, कौन सी चीज कैसे हो रही है, क्या हो रही है, ये सारी चीजें उससे कनेक्ट करनी होती है, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। ऑडिटिंग जो टाइम है इस वक्त किसी भी कंपनी का बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस ऑडिटिंग टाइम के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो ये चीज पलक झपकते हो जाएगी, और पलक झपकते आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि ऑडिटिंग के बाद आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, either company go for the merger, go for any new joint ventures, or to go for the liquidate or something, जो भी strategically जो उसकी वो होती है, ways होती है, उसको लेके कैसे चलना है, तो वो ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि एक ऑडिटर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ या डिजिटल वर्ल्ड के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स उसके एक्सेस में होंगे, और अगर उसको 3 जुलाई 2001 4 बजे एक परचेजिंग हुई है,
वो परचेसिंग की इनकम कहाँ से जनरेट हुई थी, अब इसके लिए वो क्या करेगा, बुक्स मंगवाएगा। बंदा अगले दिन बुक्स लेकर आ रहा है, वहां से बॉक्स फाइल्स लेकर आ रहा है लाइब्रेरी से, बॉक्स फाइल्स खोल के देखी जा रही है कौन सी परचेसिंग हुई, वेंडर को कांटेक्ट किया जाएगा, क्या वो परत झपकते हर चीज मौजूद होगी। लेकिन इसके लिए आपको पहले सर स्ट्रक्चर बनाना होगा, पहले अपने अकाउंट्स का एक एक डॉक्यूमेंट ऑनलाइन मौजूद हो, इनकॉर्पोरेटेड हो, रिलेशनशिप डेवलप हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर। जब वो सब चीजें मौजूद होती फिर आप एक प्राइस थ्रो करेंगे तो आपके सामने वो चीज आ जाएगी। सर एक छोटी सी एग्जांपल, रिसर्च में रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आजकल, जिससे हम जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जैसे कि ई व्यूज है, और एक बहुत ही नॉर्मल जो हम लोग हर कोई यूज कर रहे हैं एसपीएसएस। आई लव एसपीएसएस। एसपीएसएस में सर हर चीज आपके सामने आ जाती है और सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। I think we conclude this session, and on behalf of ICM Pakistan, we are thankful, especially speaker of today's और Rabeka जिन्होंने जो है वो ये opportunity provide की। We are thankful to the Karachi Branch Council for their guidance, और inshallah we look forward for these kind of session in the future. And I'm sure I've given you lots of needs in terms of the weekly में बस बहुत सारी ऐसी opportunity आती है where during your I mean your studies साथ साथ आप जब उसको सुन सकते हो whatever time you get to get the benefit out of it. I request Chairman Karachi Branch Council to come forward for the token of appreciation and share his views. अस्सलामुअलैकुम ऑल पार्टिसिपेंट्स। मैंने जब अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ लास्ट पार्ट में ही ज्वाइन कर सका, मेरी कुछ मीटिंग्स थी, और मैंने आते ही शम साहब से निशा से मैंने जो एक रिक्वेस्ट की कि मैं तकरीर नहीं करूँगा कोई, लेकिन इन 5-7 मिनट में जो मैंने यहाँ पे सुना आपको खाना साहब, तो माशाल्लाह, और ख़ास तौर पे ये वाला जो सवाल शम साहब ने आखिरी पूछा था अकाउंटेंट्स के लिए जो अहमियत है इसकी, तो आई एम सरप्राइज टू सी के नॉट बीइंग एन अकाउंटेंट, आपने जो वो ऑडिटर की जो तस्वीर खींची कि उसे क्या क्या वास्ता पड़ता है, क्या क्या, और वो किस तरह से अपनी एबिलिटीज को हम भुगतते हैं कि मैं एक एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल हूं, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, और सिंस लास्ट 14 इयर्स से मैं पेड बॉडीज का एक कनेक्शन में हूं, तो सेक्रेटरी जनरल इज लाइक अ सीईओ। जी जी। और हर चीज जब इलेक्शंस होते हैं हमारे एनुअल, तो इलेक्शन से पहले जो ऑडिटिंग फेज होता है और जो एनुअल जनरल मीटिंग में जब क्वेश्चंस रेज होते हैं उनसे बचने के लिए जो चीजें हमें करनी होती है, तो वो सर फॉर्चुनेटली मुझे भुगतनी पड़ती है। यही मैं बीइंग ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं ये दफ्तर में, क्योंकि मुझे ये इतनी कम्बरसम टास्क लगती है, और अब ये तो आपने देखा ऑडिट सॉफ्टवेयर आ गए, तो सिर्फ उसमें आपका ट्रायल बैलेंस फीड करते हैं, रिस्क एरियाज हमारे सामने आ जाते हैं, और पोटेंशियल थ्रेट्स जो उसमें हो सकती हैं, या गोइंग कंसर्न इश्यूज, ये सब चीज़ें हमें सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई करके देता है, और आपकी ये नॉलेज होना ये माशाल्लाह कमाल है। और वी रियली अप्रिशिएट। तो सर मार्केटिंग मैंने एमबीए किया था, कभी नहीं सोचा था कि कोई टेक्नोलॉजी पे भी मैं बात करूंगा, तो टेक्नोलॉजी सारी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ रहकर, और दूसरा ये आपके अकाउंट के सारे मामला। सो हेड्स ऑफ क्लैपिंग फॉर कमरान। इतना कैपेबल बनाए। हाँ जी, ठीक, हम लेक्चर के साथ ले लेते हैं, फिर मैं बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली हमारे न्यूज़पेपर का पार्ट है। पिक्चर अभी नहीं लेना, चले जाते। Just a round of applause for Ms. Eswell for the ले सकते ना? हाँ हाँ, बहुत मॉडर्न। अच्छा फिर ठीक है। राइट, टीम आ जाए, उसके बाद फिर हम स्टूडेंट्स के साथ भी आते हैं, जैसा आपके साथ है शान प्लीज
राइट इट्स योर टर्न जो इंटरेस्टेड तो वो आ जाए ताकि हम क्लिक करें इसके बाद इस तरह से वेरीफाइड हमने जो है वो आप लोगों को वहां पे अच्छा से ये मेरा नहीं है, वो है। वो प्रेजेंटेशन में कॉपी कर दो माइक है ये माइक को ये लो यार, ये कॉपी कर रहे हैं लैपटॉप लेके जा रहा है।